Namaste and good evening, everyone. I, Ritika Gupta, Assistant Director at INFRI Impact and Policy Research Institute, Prabhav Evam Niti Anusandhan Sansthan, extend my heartiest welcome to you all to INFRI #Web Policy Talk. Today, we are here for a panel discussion on rural realities, practitioners' experiences in tackling the second wave in Indian villages. The panel discussion is being organized by Center for Habitat, Urban and Regional Studies at IMPRI, Tarun Bharat Sangh Alwar, and Parmarth NGO. I would now like to request Dr. Arjun Kumar to introduce our program and the speakers further. Sir, over to you. Thank you. Thank you, Ritika. So we welcome all of you for this very important, pertinent, and very required panel discussion on rural realities, practitioner experience in tackling the second wave in Indian villages. And today we have a very distinguished panelists who are practitioners and so busy. We are so thankful to have all of them today to find out some time and experience with us that what can be the changes in policies or what are the steps which are required, which will have larger positive impact. So let me introduce the panelists for today. We have Dr. Yogesh Kumar sir, who is founder member and executive director of Samarthan Center for Development Support based in Bhopal, Madhya Pradesh. We have Shri Sanjay Singh ji sir, who is also known as Waterman of Bundelkhand, and is secretary of Parmar Samaj Sevi Sansthan from Jhansi, Uttar Pradesh. And we also have Ms. Pratibha Shinde ma'am, Secretary General, Lok Sangharsh Morcha, and I'm sure ma'am is joining from Maharashtra. We also have Maya Vishwakarma ma'am, who is founder of Sukarma Foundation. Welcome ma'am. We also have Ms. Marinita Shetty ma'am, who is co-founder and CEO of India Development Review, very eminent and very famous. We also have Dr. M.R. Sitharaman sir, who is consultant orthopedic surgeon at Vivekananda Memorial Hospital in Sargur. And he's also with SPYM, Swami Vivekananda Youth Movement, and also executive director of World Foundation, Mysore, managing trustee of Disha Foundation, and a very famous medical professional. So welcome, sir. And today the session will be moderated by Dr. Indra Khurana ma'am, who is senior expert of water sector and governance issues, and is also currently vice chair of Tarun Bharat Sangh Alwar. So with that, I hand over the proceedings to Indra ma'am to conduct the panel discussion with her opening remarks. Ma'am, over to you. Thank you, Arjun. And thanks to all of you panelists for being here with us today. Because all of us, I know, are really struggling, especially all of you who are working at the grassroots and who are working in the villages. It must have been a real challenge for you all to take out time and basically be part of this webinar discussions. And that too at such a short notice. हम चाहेंगे कि हमारी जो डिस्कशन हो आज की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, और जो हम में से जो हिंदी में बोलना चाहता है वो हिंदी में बोले, और जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है वो अंग्रेजी में बोल सकता है, क्योंकि हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी बात कह पाएं और शेयर कर पाएं। जैसे कि हम जानते हैं, द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इज जस्ट स्प्रेडिंग लाइक एन अनकंट्रोल्ड वाइल्डफायर। जो पहला वेव था, जो पहला दौर था, जो भी डेटा हम सबके पास है, उसमें ऐसा लगा था कि माइग्रेंट्स वगैरह को तकलीफ बहुत हुई, लेबर को तकलीफ बहुत हुई, पर शायद इन्फेक्शन रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में, इंडिया के जो हिंटरलैंड में, उसमें इतना ज्यादा नहीं हुआ। पर अभी जो ये सेकेंड वेव है, ऐसा लगता है कि this COVID-19 has silently and slowly invaded all our villages, and it is a scenario where the crisis is so acute in urban areas, और सबका ध्यान, मीडिया का ध्यान, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, अर्बन एरियाज पे ऐसा लगता है फोकस्ड है। और आज ही मैं पढ़ रही थी डाउन टू अर्थ में कि गुजरात में 18,000 गांव हैं, और वहां का कहना है कि वो हर एक गांव में COVID-19 पहुंच चुका है। तो आप जब सोच सकते हैं कि इतना जो हमारा विशाल देश है, और अगर 6 लाख के ऊपर हमारे गांव है, क्या स्थिति होगी और उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल आल्सो एंडोर्स द फैक्ट एंड प्रोवाइड अस मोर इंफॉर्मेशन कि रूरल एरियाज आल्सो नीड more focused attention.
जो मैं सुनती हूँ टेलीविजन में और पढ़ती हूँ, जो गाइडलाइंस आते हैं मिनिस्ट्री से, डॉक्टर गुलेरिया से, अलग मेंबर्स ऑफ कोविड टास्क फोर्स, कि कैसे मैनेज करना है, घर में आइसोलेशन कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो मुझे लगता है अर्बन सिनारियो के लिए काइंड ऑफ ठीक है। रूरल एरियाज में क्या, रूरल एरियाज में हम इसको कैसे करें, क्या हमें सेपरेट गाइडलाइंस चाहिए, मतलब कुछ दिशा हमें, मुझे लगता है केंद्रीय सरकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी मिलनी चाहिए, और कैसे वो अटेंशन हम करें, क्या चाहिए, ये थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें आज और आगे भी, तो मैं समझती हूँ कि शायद इसको हम आगे ले जा पाएंगे। तो आज का मुख्य कारण व्हाई वी आर हियर टुडे इज टू ड्रॉ अटेंशन टू द रूरल सेकेंड वेव क्राइसिस, learn about how groups like you all, with all the foot soldiers that you have in the villages, what are you seeing in the villages, क्या challenges हैं आप, और इसको address करने के लिए क्या कर रहे हो। मैं जानती हूँ आप सबके पास बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जैसे प्रतिभा के पास होगा, योगेश जी के पास होगा, माया के पास होगा, संजय के पास होगा, इतने गांव के, जैसे संजय के पास उदाहरण के तौर पे जल सहेलियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे साथ, पर क्या इनको घर घर भेजने का ये टाइम है, उनको हम कैसे रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये सब हमारी ग्राउंड फोर्स है, पर उसको हम कैसे यूज करें, और ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और हालांकि हम सब जानते हैं कि बहुत से कारण है क्योंकि हम इस स्थिति पे आज यहाँ पे हैं, बट आज का जो हम सब ने सोचा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पे कम ध्यान देके, हम जो गांव में देख रहे हैं वो, हम जो कर रहे हैं वो, और कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, क्या ये जो पैनल है, क्या इम्प्री है, हम सारी संस्थाएं, हम आगे कलेक्टिवली कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारा फोकस आज के सेशन का यही है, आप सबसे सीखना कि आप क्या कर रहे हो, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे के लिए आप क्या सोचते हो हमको करना चाहिए, ताकि ये आगे हम कुछ हद तक इस सिचुएशन को टैकल करें। जैसे कि अर्जुन ने शेयर किया कि 3 मुख्य सेशन होंगे। पहला राउंड हर एक पैनलिस्ट पे जाएंगे और 8-8 मिनट में आप अपने, जो आपके अपने आप बीती है, देखी हुई है, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में 8-10 मिनट में आप बताएंगे, और आप कौन से अप्रोचेस यूज कर रहे हो। और सेकंड जो राउंड होगा 3 या 5 मिनट का, उसमें के आपके क्या सजेशंस है वे फॉरवर्ड के लिए, और अलग, जैसे मैंने कहा, अलग अलग लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल में क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्या हमें करना चाहिए। और स्मरणिता, मैंने ऑर्डर कुछ ऐसे ही रखा है रैंडम, पर मैं स्मरणिता, मैं माफी चाहूंगी, दोनों ऑर्डर में मैंने आपको लास्ट रखा है, इसलिए so that you can listen to everybody and the perspective you have from the Indian Development Review and working with social media and working with donors, listening to people, then you can give us more informed suggestions on, from your perspective, how we can go forward. I hope that's okay. Yeah, no, that's perfect, right? Because I'm not on the ground as much as everyone else is, so it's perfect. Yeah, and thank you for being with us, all of you. तो और वक्त ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सीताराम को, पहले वो, if you can share in around 10 minutes. Dr. Sitaram, over to you. Okay, thank you, Dr. Indira. Hope I'm audible. Right now, Yes. I think I'm visible. Yes, you're audible. If there are any connectivity issues, I'll disappear and my voice will continue. It's a very important topic, all right, and timely as well. But in some ways, maybe it's a bit late. We should have probably done this a bit earlier, brought to focus the challenges in rural areas a bit earlier, so that we would have had more time to react, more time to stem the rot. But then at least now we need to pull up our socks and see what can be done. The few minutes that we have now, like you rightly mentioned, Dr. Indira, we will see if we can split it into understanding the rural realities and then what we need to do, what we have been doing.
and then look at what suggestions we could give. So I'll just start with the rural realities and the current status as we see. So I work for an organization called Swami Vivekananda Youth Movement. We have a rural hospital about 60 kilometers from Mysore, which is our institutional center. But that apart, we have extensive presence in the community across the entire state of Karnataka, where we work in different health determinants like water, sanitation, hygiene, and also look at other development issues like persons with disabilities and virtually all aspects. And we work with more than 1,000 schools across the state. So the connect with the community has been quite extensive. And the major part of our work has been in the rural areas. And so the window through which we could see the epidemic, the pandemic developing has also been quite wide open and telling us a lot of stories. Very briefly, first time when it hit us, we did not know what hit us. This time we were supposed to know, but unfortunately we didn't internalize the lessons that the whole world taught us. In fact, the whole experience across the globe taught us. And that is true even of the rural areas. First time also the rural areas suffered a lot, but it didn't come as much into focus as the urban areas did. And even now that has been the same case. Just this morning, I've spent about 2 hours on teleconsultation about the COVID issue itself. And there was a village from a district called Chamarajnagar, a neighboring district, where in a single village of about 300 to 350 population, about 40 to 45 people have been affected, and they have all been identified as COVID positive, almost simultaneously. Now, I was talking to them, and what, to my regret, came across was that there appeared to be a strong feeling that, hey, it doesn't happen to me. That attitude of indifference, which very unfortunately still persists, because they said last year nothing happened to us, and so this year also we are safe. So we see that underlying sort of indifference and bordering on negligence, which seems to be across the whole state in all rural pockets as one of the most predisposing factors, which has led to a very rapid wildfire-like spread of the virus. Last time, the lockdown was in place a bit earlier. The people who had the virus did not get into the rural areas as easily as they did this time. And so we see that the amount of spread has been quite rapid. Secondly, we also have seen that due to certain behavioral patterns that we see in the rural areas, control is that bit more difficult. Insisting on, let's say, wearing a mask, somehow it has been very difficult. And so also certain practices like cough hygiene and spitting, particularly in some parts of rural Karnataka, is so common that the oral secretions and the nasal secretions very easily find their way out into the open. And distancing being a very difficult thing to practice, the spread has been pretty rapid. Now, coming to certain disease characteristics which have hit the rural areas very hard, the key in managing the disease, talking from a medical perspective, is early detection. Now, if we look at the detection facilities, diagnosis facilities, we see that the penetration is pretty poor. The RT-PCR, which is considered the gold standard, is very difficult to access for the rural tribal population that we work with. And then even if you give the sample, the report is so delayed that by that time the disease has already progressed. That is the first stage of problem. The second is of identification of the danger signs. Disease specific characteristic includes that the first few days there may be a lull. So by the time you reach the 5th or 6th day of the symptom,
you may feel you are better, no fever, no cough, but then the cytokine storm hits you, and God save you. Unfortunately, the rural realities are such that even if you identify a RT-PCR positive patient with difficulty, tracking their progress in terms of saturations is so much more difficult. So the key to prevent complication is early identification of falling saturations and other organ dysfunction, which is not happening, and which is what is contributing significantly to the mad rush all over the country for oxygen, for ICU beds and whatnot. So these are, when we look a bit deeper and see why this is happening, unfortunately, our rural health infrastructure has remained sort of, stepchild. It has continued to languish in neglect, and the past 1 year, unfortunately, did not see the major repair that it required so badly. So we still have primary health centers with inadequate infrastructure, inadequate human resource. So as such, the penetration being limited, you see that has rubbed off even on the COVID issues. And so a drive to vaccinate people is hampered because you don't have the necessary infrastructure which works in full flow to get the precious vaccines to the needy people and cover them with the necessary protection. At the same time, though we do have our foot soldiers in the form of ASHA workers and the ANMs and the other grassroots workers, we also see equally, realistically, that their hands are also rather limited. Their capacities to deliver, given the challenges, are still limited. So when we look at the whole scenario, the disease characteristics also seem to be sort of all poised for an explosive spread across the entire region. And the system and the region also appears to be sort of predisposed to receive this explosion. So we see that the relatively younger individuals also getting affected. And the other thing that also I have particularly noticed, because I work extensively with the vulnerable groups, including the persons with disability, and the elderly population, the level of care that they receive traditionally in the rural areas has been rather poor. So that has again significantly added to the burden. And so we need to understand these realities and look at how we can take it forward and how we can address the situation. The past few days in our hospital, we have a COVID care unit that has been set up with oxygen and non-oxygen beds. We have seen that there's been almost full occupancy, and there's a waiting list as well. And so the faster we look at preventing such instances, the better it is. And for that, we in our organization have been adopting a comprehensive approach where we look at holistic intervention. For easier understanding, I have broken it down into the ABCDE approach, where we look at A for the right attitude and awareness building, B, behavior change communication and making sure that COVID appropriate behaviors are practiced across all settings, and C, control measures, including a vaccination drive focused on the vulnerable groups like the elderly and patients with comorbidities. And then D, disease-specific intervention, including the COVID centers where we can isolate and treat the patients, plus a more organized home isolation system, which we have set in motion in some rural pockets. And then E, I think that is extremely important, which I have been sort of batting for in different fora. The existing illnesses cannot be neglected.
existing illnesses like maybe the diabetes and the hypertension and other comorbid conditions, NCDs, the non-communicable diseases, and the emerging issues like any emergency that comes up. So these A, B, C, D, E will have to be taken simultaneously ahead, and only then we will be able to have some grip over the situation. I'll stop here, and there is the next stage where we look at on a larger perspective, on a larger canvas, including the policies, the GHEFs of that, GHIJs of that. So that we will continue later. I'll stop here, Indraji, and maybe we can take on and continue with the next as the questions come up. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Sitaram. You've actually covered all the points that we wanted in the first round. I wanted to request you, if you've got us later, if you've got a home isolation system which you are kind of put in place, is it possible to share that so that we can just, sure. So that we can share it with the other people and they can also get an idea and, use it, adapt it, whichever way they think. So thank you for that. Next on the list was Pratibha, but I think she has just messaged that she needs to be called in late because there is some kind of emergency. So can I then request Yogesh ji to please share? Thank you, Indraji. All the distinguished panelists, my friend Arjun, who has been requesting me to be sometimes here on this platform with his institute. So thank you, इंदिरा जी, फॉर ऑर्गेनाइजिंग. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया. इस मुश्किल का कठिन समय है. मैं प्रयास करूंगा, जैसा आपने कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को थोड़ा मिक्स करते हुए, और वैसा ही मैं कोशिश करूंगा. तो एक तो मैंने कुछ थोड़ा सा पावर पॉइंट में डाल दिया था जिससे थोड़ा आसान होगा. अगर स्क्रीन शेयरिंग मुझे मिल जाएगी तो मैं कर सकता हूं. ऑलरेडी है, प्लीज. राइट. ठीक है. तो ये थोड़ा मुझे ही आसान करने के लिए होगा और थोड़ा फोकस्ड रहने के लिए. और डॉक्टर सीतारामन ने बहुत बढ़िया से, मेरे ख्याल से पूरा विस्तार से रख दिया. वो खुद डॉक्टर भी हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. So he has really put things very crystal clear what we need to do. तो हम थोड़ा सा जो अब हम लोग जो देख पा रहे हैं उसको आप लोगों के बीच में लाएंगे और बातचीत करेंगे कि क्या करने की संभावनाएं हैं, और फिर पॉलिसी वाले इश्यूज को सेकेंड राउंड में बात करेंगे. तो जो ग्राउंड सिचुएशन है, जैसा डॉक्टर सीतारमन ने भी कहा और हम सब लोग भी फैमिलियर हैं उससे, वो बहुत मुश्किल है. स्प्रेड हो गया है रूरल एरियाज में. हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कहता है कि 10% पॉपुलेशन रूरल एरिया की अफेक्टेड है. उनके पास सिम्टम्स हैं. RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच टेस्ट्स. दे हैव सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, फीवर. उनको लगता है नॉर्मल है, जैसे पहले कोल्ड कफ था वैसे ही है, ठीक हो जाएगा. अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक दूसरे तरह का बुखार है या कफ है. और उसकी वजह से जो उनका होम आइसोलेशन या कम्युनिटी आइसोलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. तो वो घूम भी रहे हैं क्योंकि उनको लगता है एक नॉर्मल सा बुखार हो रखा है उनको या हुआ है. तो ये जो पूरी लो अवेयरनेस है कोविड पॉजिटिव केस मैनेजमेंट की, क्योंकि पिछले साल जो हम अवेयरनेस कर रहे थे और इस साल में बहुत अंतर है. जैसा इंदिरा जी ने भी कहा कि अभी ये मास्क है जरूरी तो है अभी भी, और डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन बुखार है तो क्या करें, सिम्टम है तो क्या करें. तो वो वाला जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल नहीं है लोगों को, और उसको देखने की आवश्यकता है कि कैसे किया जाए. और ये जो एक क्रिटिकल नीड है इसके साथ जुड़ी हुई कि ऑक्सीमीटर्स हों जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जा सके, थर्मामीटर्स हों जिससे टेम्परेचर लिया जा सके. ये जो बेसलाइन बनाने का जो एक एक व्यक्ति जिसको प्रभावित है उसकी व्यवस्था नहीं है. और उसके एब्सेंस में आप देख रहे हैं कि जब केसेस बिगड़ते हैं तो लोग फिर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल्स में, भीड़ भी ज़्यादा होती है. तो वो एक बड़ा एक शॉर्टेज हम लोगों को नज़र आ रहा है. बहुत जगहों पे पंचायतों ने
आइसोलेशन सेंटर्स तो बना दिए हैं, बेड्स लगा दिए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे उसकी वजह से। PHC CHC पर ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है, तो इसलिए लोग जाते भी हैं तो उनको उस क्रिटिकल केयर में कोई लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर, कुछ जगहों पर है जहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज बात कर रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मॉनिटरिंग में ये निकल के आ रहा है कि उनको किसी तरह के मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर के सपोर्ट की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स चाहिए या अन्य कोई दवाइयाँ चाहिए, तो वो पूरी तरह से कोई सिस्टम नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में कि वो डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सके। शहरी क्षेत्रों में फिर भी कुछ ऐप्स बन गए हैं, कुछ आप एक्सेस है, आप 2-3 किलोमीटर में दौड़ेंगे भागेंगे, प्राइवेट डॉक्टर्स का बड़ा नेटवर्क है, तो सरकारी सिस्टम पे तो जोर है ही, दबाव बहुत है, और प्राइवेट डॉक्टर्स का भी उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि जो वहाँ की इतनी बड़ी जनता को देख सके। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है कि शायद ये वही हाईलाइट करेंगे जो गड़बड़ियाँ हैं, ये क्या हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। कई जगहों पे हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि हम उनको सप्लाई कर दें बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स, और उसके लिए हमने कहा कि आप चिट्ठी लिख दीजिए। उन्होंने कहा हम आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आप जो देना चाहें दें, क्योंकि हो सकता है हम चिट्ठी लिख दें और आप कहें कि ये गैप्स हैं हमारे यहाँ। तो एक जो माहौल है वो थोड़ा सा मुश्किल है। कम्युनिटी लेवल पर भी इस समय थोड़ा एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है, क्योंकि सरकार उनके लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है, तो उस वजह से भी उनको लगता है उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं, तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा विस्तार से बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि सिचुएशन इज़ ग्रिम, इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट इन टाइम टू कम, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर अस टू कम टुगेदर एंड वर्क। तो अब हम कर क्या सकते हैं, ये सवाल है कि हमारे पास क्या हो गया, चला गया। मेरा स्क्रीन चला गया ना? नहीं, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, आपका कोविड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड वो दिख रहा है। तो दिख रहा है, नेक्स्ट पे जाना। जी जी जी। तो हमारा जो इसमें मानना है कि हम सब लोग डेटा भी देख रहे हैं कि 90% लोग तो ठीक हो जाते हैं, और खासतौर से जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। एज ग्रुप भी अब आप देख रहे हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं वो 60+ वाले नहीं है, लेस देन 50 है, हालांकि उसमें बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लार्ज डेटा सेट है वो यही कहता है कि कम से कम 90% लोग तो अगर वो ठीक से मैनेज करें तो वो उससे निकल सकते हैं। तो इसलिए सीरियस है लेकिन मैनेजेबल है अगर हम लोग उसको ठीक से करें। तो जो डिसेंट्रलाइज योगेश जी एक सेकंड, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर ये स्लाइड अगर आप हमें नेक्स्ट सेशन में दें, ताकि व्हाट वी कैन डू, सो आई थिंक दिस विल बी एन एक्सीलेंट suggestion on a proposal on how we can manage it. Okay, so I stop here. So this is basically what the situation is, and then we can come back to what we can do, right? Okay, so the other slides are about your proposal about on what we can do, right? Okay, okay, so decentralized management, right? Yeah, so maybe the next session when it's your Next turn, round we will give, be there. yeah, and we'll give more time so that you can go through these slides in the next session. Perfectly fine, perfectly fine. Thank you. Thank you so much, Yogesh ji. संजय जी, आप अपना अनुभव और स्थित ग्राउंड रियलिटी हमारे साथ शेयर करेंगे। आप क्या देख रहे हैं और अभी तक आपने कुछ किया है, और अगर किया है तो क्या किया है? संजय? संजय सर, आवाज जा रही है आपको? But sir is not there. It's his device is moving though. मैं कॉल कर लेता हूँ सर को। तो तब तक हम आ गए क्या? नहीं, तब तक we can go to our next panelist. Yeah, हाँ, तो ठीक है। Arjun, just try with Sanjay, and meanwhile, may I request Maya to please share about the situation in your area of work and the great work that you're doing there. Over to you. Yeah, can you hear me, guys? Yes, yes. Yeah, everyone can hear me. Yes. Thank you so much, Indira ji, for catching me on last minute. I'm very thankful.
And some of them here in a panel, I know them. योगेश जी, आपने बहुत अच्छा बोला. मैं आपके ही नज़दीक हूँ. अपन मिले थे एक बार कॉन्फ्रेंस में भोपाल में. तो मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ. और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सुकर्मा फाउंडेशन जो हमने अभी 4 साल पहले शुरू किया था, और उसका जो मेन पर्पस हमने शुरू किया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर किया था. सैनिटरी पैड बनाए और यहाँ के जो ट्राइबल और जो विलेजेस हैं वहाँ पे हम जागरूकता लेकर आए. और उसके साथ साथ मुझे लगा कि यहाँ पे जो मेरा गांव है, मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो लास्ट विलेज है उसी गांव में पैदा हुई, और वही चीज़ें मैंने काफ़ी हार्डशिप जो देखी यहाँ पे. तो मुझे लगा कि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस है और हमारे यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है. तो मैं रहती कैलिफोर्निया में हूँ, सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन पिछले 6-7 साल से जब से ये फाउंडेशन शुरू किया है, मैं 4-5 महीने इंडिया में रहती हूँ, फिर 1-2 महीने के लिए सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जाती हूँ, फिर से वापस आ जाती हूँ. तो हमने 1.5 साल पहले यहाँ पे एक टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया था, और वो ये सोच के कि डॉक्टर्स तो कभी हमारे गांव में आ नहीं सकते, लेकिन हमारे गांव के मरीजों को किस तरह से डॉक्टर्स की मदद मिले. अभी मैंने यहाँ पर एक डॉक्टर श्रीनाथ जी थे, उनको मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा सर. आप जो कह रहे हैं वो सच में बहुत ही मतलब पूरा सही है. और जो मुझे लगा कि हमने जब 2.5 साल पहले ये टेलीमेडिसिन शुरू किया हमारे गांव में, तो लोगों को लगा कि आपने ये मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ तो 15-20 किलोमीटर में हॉस्पिटल हैं जहाँ पे चले जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल 100 किलोमीटर है, और रोड्स इतने खराब हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आता है. तो ये सोच के जब यहाँ किया, तो शुरुआत में धीरे धीरे लोग आते थे, लेकिन जब हम पिछले साल देखा कि जब माइग्रेंट्स का जो इशू हुआ, उसके साथ साथ जो कोविड था वो शहर में था, लेकिन गांव में डर बहुत था. गांव में कोविड नहीं था, कम था, इक्का दुक्का मरीज आते थे, लेकिन डर इतना था कि गांव के लोग काफी मतलब डरे हुए थे कि अब हमें दूर नहीं जाना है. मतलब सब कुछ बंद था और लॉकडाउन भी ज्यादा था. लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि गांव में जो होली का सीजन था और उसके बाद एकदम से जो आउटबर्स्ट हुआ यहाँ पे कोविड पेशेंट का, वो अनबिलीवेबल है. अभी हम लोग पिछले साल हमें लगा कि हमारा क्लिनिक जो है सिर्फ 9 to 5 खुलता था, बिकॉज हमारे डॉक्टर उतने ही टाइम पे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते थे. जैसे भोपाल में संजीवनी क्लिनिक या दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उसी प्रकार से हमारे सुकर्मा फाउंडेशन ने टेलीमेडिसिन सुकर्मा प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक शुरू किया था. तो यहाँ पर शुरुआत में हमको लगा कि कम पेशेंट हैं, तो 9 to 5 हम लोग खोलते थे. लेकिन लास्ट ईयर जब देखा कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल थे उसमें किसी भी मरीज मतलब जो अदर देन कोविड ये कोई देखता नहीं था. तो सारे मरीज जो होते थे वो बेचारे कहाँ जाएंगे, किसी के पास गोलियां नहीं है, किसी के पास ट्रीटमेंट कुछ भी मतलब बीपी है या कुछ और है, तो उसके साथ साथ वो लोग सब यहीं आने लगे. तो फिर हमने उसका टाइमिंग जो है 8 से रात तक शुरू किया. और अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे गांव में करीब 3,000 की पॉपुलेशन है, और यहाँ का जो पीएचसी सेंटर है वो 15 किलोमीटर है, साइनखेड़ा और गाडरवारा. तो यहाँ से यदि एम्बुलेंस को भी बुलाएं तो भी हमारे गांव में एम्बुलेंस मना कर देते हैं फर्स्ट उसमें, जब तक कि उनके ऊपर प्रेशर ना हो. कारण ये है कि यहाँ पे माइनिंग्स हैं और यहाँ ट्रक इतने चलते हैं और रोड इतनी खराब है कि वो एम्बुलेंस ही खराब हो जाता है यहाँ तक में. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने फिर ऐसी व्यवस्था की कि क्यों ना हम अपने ही जो छोटा सा क्लिनिक है इसी में कुछ बेड्स बढ़ा के, और जो अर्ली सिम्टम्स वाले या जनरली फीवर वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनको हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट दें. पूरी तरह से ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि उनका ऑक्सीजन लेवल हर बार बार चेक करें. उन्हें दिन में 3 या 4 बार हम लोग बुलाते हैं यदि किसी को फीवर होता है, तो ऑक्सीमीटर और उसके साथ साथ उनका फीवर और जो डॉक्टर्स हैं उनकी बराबर मॉनिटरिंग करते हैं. और उसके साथ साथ उनको बहुत सारे फ्लूइड है, जो कि मतलब अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है. और हमारा जो एरिया है वो ज़्यादातर फार्मिंग का एरिया है, तो लोग अभी खेतों में बहुत देर तक काम करते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि यदि हमें फीवर है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है और घर में रेस्ट करना है. वो रेस्ट करने की बजाय गाँव खेत में जाके
काम करने लगते। तो ऐसे लोगों को पूरा पूरा एक तरह से मतलब डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं वो उनको बार बार हम लोग हमारे वॉलंटियर्स, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो लोग उनको एम्फेसिस करके कि नहीं आपको घर में रहना, नहीं तो आपके और लोगों को भी हो जाएगा। तो हमने ये पैटर्न देखा है कि अभी तक जैसे योगेश जी ने अभी बताया कि 10% गांव के जो लोग हैं उनको मतलब अभी ऐसा डेटा आ रहा है कि फीवर या कोविड माइल्ड सिम्टम के साथ हो रहा है। मेरे यहाँ पे 50%, जो मेरा गांव है उसमें 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी फीवर भी है, माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, बट एक चीज और अच्छा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल मतलब 90 और 99 के बीच में होता है। तो मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है कि उनको हम यहीं पे रह के ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने कुछ और चीजें ऐड की जो कि हमारे क्लिनिक में पहले सिर्फ 1 या 2 लोगों की जगह थी, मतलब लेट के जिनको ड्रिप चढ़ा सकें या वो रेस्ट कर सकें। जैसे ही जब ये पिछले महीने से जब ये कोविड शुरू हुआ तो हमने 8-10 बेड और बढ़ा दिए, मतलब ओपन में ऐसे बेड लगवाए ताकि वो आराम से यहाँ पे अपना ड्रिप ले पाए, और उसके साथ साथ जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए स्टीमर्स लगाए, स्टीम की जो छोटी छोटी मशीन आती हैं, ताकि जिनको खांसी है, क्योंकि स्टीम जो है काफी हेल्पफुल है, सभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप भाप लीजिए, आप जो है गर्म पानी, कुनकुना गर्म पानी पीजिए, और उसके साथ साथ जो मेडिसिन है वो दवाई टाइम से लीजिए, और उसके साथ में रेस्ट भी करिए। तो गांव में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है उसका आज भी बिल्कुल नहीं पालन करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर अभी जैसे शादी ब्याह चल ही रहे हैं तो यहाँ जाके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके साथ साथ पैरी पोना, पाँव छूना, ये सब चीजें, ये सारी प्रथाएं अभी भी चालू हैं। और उन्हें ये नहीं पता है कि इतने सारे लोग में से कम 1-2% ऐसे होंगे जो असिम्प्टोमेटिक कोविड हो सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे कोविड पेशेंट है जरूर, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उनको बोले हम यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते कि आपको 4 दिन तक यदि फीवर नहीं उतरे तो आप RT-PCR करा के आइए, तो उन्हें टाउन में जाना पड़ता है। उसके लिए वो हमसे हाथ जोड़ते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मरेंगे, आपके यहीं ठीक होंगे, लेकिन आप हमें वहां मत भिजाइए। उसका कारण ये है कि जो उन्होंने पहले की जो स्टोरियां सुनी है पिछले साल की और अभी जो शुरुआत में, कि जो कोविड सेंटर जाता है उसको वहीं पे अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब सरकारी ऑफिसर ले जाते हैं और उसको किसी भवन में या किसी ऐसे सेंटर में डाल देते हैं जहाँ पे खाना भी नहीं मिलता, वहां से आप भाग भी नहीं सकते, वहां से आपके फैमिली मेंबर्स भी नहीं मिल सकते। तो इस तरह की उनके आसपास में जो है चीजें, अफवाहें, जो भी हम कहें, वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो उनको जिस तरह से ट्रीट करना है उनको हमें उनके घर में ही रह के करना पड़ता है। तो जितना फॉलो अप होता है हम उनसे करवाते हैं, उनको दवा टाइम से देते हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। तो 4 से 5 दिन में जो है कम से कम उनके फीवर्स चले जाते हैं, सिम्टम्स चले जाते हैं, और वो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। अब एक समस्या एक और आ रही है हमारे यहाँ पे, जो हमने कॉमन ट्रेंड देखा है कि एक फैमिली में जैसे किसी को भी फीवर आया, उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद वो तो ठीक हो जाते हैं, 1 वीक में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उनके नेक्स्ट मेंबर को आता है, फिर उसके नेक्स्ट मेंबर को आता है। तो ये जो ट्रेंड है कि एक साथ 2 या 3 मेंबर जो हैं सिक पड़ रहे हैं, उनमें मतलब वो थोड़ा एक चिंता करने वाली बात है कि हम उनको घर पे ही रह के आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गांव में आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे छोटे घर होते हैं, और पहले जो होते थे घर खुले हुए होते थे, दलान होती थी, बाड़ा होता था जिसमें लोग अलग अलग अपनी खाट डाल के आराम से सोते थे। अब जो प्रधानमंत्री आवास जो चला है, ये एक योजना, उसमें इतने छोटे 4 दीवारी वाले घर बना दिए हैं कि एक ही आदमी को, एक ही कमरे में 3-3 4-4 आदमी को सोना पड़ता है, क्योंकि वो अब चाहे के भी उस मरीज को बाहर नहीं रख पाते हैं कि भाई ये कहाँ बाहर जाएंगे। और मच्छर भी पहले की तुलना में अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं गाँव में, तो सबके पास मच्छरदानी नहीं, सबके पास इस तरह के चीजें नहीं है कि वो अपने आप से जो है इससे प्रिकॉशन ले पाए। तो अब उनको होम आइसोलेशन करना बड़ा टफ टास्क है, लेकिन फिर भी उनको अवेयर करते हैं कि कम से कम घर में आप मास्क लगा के रखिए। हमने कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट पूरा फ्री कर दिया है, जैसे हमारे पहले हम कंसल्टेशन के साथ साथ 60 रुपीज हम लोग पर पेशेंट कंसल्ट करते थे, जो 7 डेज तक वो कंसल्टेशन वैलिड रहता था। लेकिन अब हमने वो वेव कर दिया ताकि
हर कोई यहाँ पे चेकअप के लिए आए, हर कोई यहाँ पे अपना मॉनिटरिंग करे, वो चेकअप कराए, और उसके साथ साथ सिर्फ दवाइयों का मिनिमम हम लोग पैसा लेते हैं। तो उसका एक हमको फायदा ये हुआ कि अब जैसे ही घर में किसी को पहले दिन बुखार आता है, वो तुरंत हमारे इधर आते, क्योंकि उनको पता है कि अब हमें पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे पास यदि 200-300 रुपए हैं, तो हम जाके आराम से बुखार की गोली ले आएंगे और चेकअप कर लेंगे, डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। ये चीज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीजें आई। तो अभी पिछले हमने 3 हफ्ते से देखा था कि लगातार हमारे यहाँ पेशेंट बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस हफ्ते जो है काफी कम पेशेंट हमारे यहाँ आना शुरू हुए। पहले हमारे यहाँ 150 पेशेंट हर रोज आते थे। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि 80-90, जब मंडे को दिन मतलब काफी बिजी होता है तो उस दिन 100 पेशेंट तक आते हैं। लेकिन ये चीज है कि जैसे एक घर में सभी मेंबर्स को यदि फीवर आ चुका है, तो फिर वो फैमिली पूरा फ्री हो गई, मतलब उनको फिर अब दोबारा सिक हो ऐसा बहुत कम चांस होता है। और दूसरी चीज, एक और चीज है कि यहाँ पर जितने रिमोट एरिया में आप जाएंगे, आपको जो एक वैक्सीन का डर इतनी बुरी तरह से भरा हुआ है कि मैं अपने खुद के पेरेंट्स को नहीं मना पा रही हूँ, वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, कि मैं आपको वैक्सीन लगवाने लेके चलती हूँ। वो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार वैक्सीन वाले आए, और वो भी मतलब बिना थर्मामीटर के आए। अब वहां पे जैसे मरीज जाए, मतलब नॉर्मल पर्सन जाए 45 के ऊपर कि भाई हमें वैक्सीन लगा दीजिए, वो लोग उनसे क्या पूछते कि आपको फीवर तो नहीं है? अब वो कहेंगे हमको कैसे पता कि फीवर है, मतलब ऐसे हमें वो तो नहीं लग रहा, लेकिन हम श्योर नहीं है उसमें। तो वो उनको वहीं से वापस कर दिया। तो हमारे यहाँ पे करीब 2,500-3,000 की पॉपुलेशन वाले विलेज में सिर्फ 80 लोगों को वैक्सीन लगा, और उसमें से ही मतलब जो है सेकेंड डोज तो अभी तक लगा ही नहीं। ये 4 हफ्ते पहले वाली बात है। तो ये जो कहा जाए कि जो ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन है वैक्सीनेशन का या अवेयरनेस का, ये काफी पुअर है। और एक तरह से डर जो भरा है लोगों के कि हम लोग अपने हेल्थ वर्कर को ही बोल बोल के थक गए कि आप लोग को वैक्सीन लगवाना, ये मैंडेटरी है। वो कहते नहीं, हमारी फैमिली में 4 लोग एक्सपायर हो गए, वैक्सीन लगवाया था उनने, इसलिए हम तो नहीं लगवाएंगे, हम अपनी रिस्क में जो है काम करेंगे। तो अब इस तरह की सिचुएशन आपके आसपास आ रही है, तो आप उसमें अब क्या करेंगे? क्योंकि हम सबको लगता है कि वैक्सीनेशन एक ऐसी अभी की डेट में संजीवनी है, जो काफी हद तक इन्फेक्शन को कम करती है। सिक हो जाते हैं फिर भी मतलब क्रिटिकल कंडीशन को रोकती है। तो ये सारी चीजें अभी मुझे लगता है समय लगेगा, लेकिन हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं कि फ्री मेडिकेशन थोड़ी बहुत जो फाइनेंशियल वीक फैमिलीज हैं उनको दें। फ्री कंसल्टेशन तो है ही हमारे यहाँ, और भी ऑक्सीमीटर को हम बढ़ा रहे हैं, थर्मामीटर को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी जो कम्युनिटी है हमारे यहाँ आसपास, 8-10 और गांव हैं, वो लोग भी हमारे पास आते हैं। तो इस तरह से ये लकीली मैं यहाँ पर हूँ, जनवरी में मैं आई, और तब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड में इन्वॉल्व होके यहाँ के लोगों को समझा पा रही हूँ, और वो मुझे सुनते भी हैं, क्योंकि मैं बाहर भी रहती हूँ, काफी समय से यहाँ ग्राउंड में काम कर रही हूँ। तो कम से कम हमारे गांव के लोग तो मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। जिनको कोविड भी हुआ है वो भी ठीक हो चुके हैं। तो 99% जो लोग हैं अभी तक ठीक है। थैंक यू माया, सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगा आपको सुन के, और जो आपके रिजल्ट्स अभी तक आप गांव में देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट थी, आप चैट बॉक्स में अपने गांव का नाम लिख पाएंगे क्या? क्योंकि इसको जब हम रिपोर्ट बनाएंगे और मैं मीडिया में लिखती हूँ, तो मैं इन सब चीजों में जो आप सब कर रहे हो उसके बारे में लिखना चाहूंगी। सो द नेम ऑफ द विलेज विल really help. Yeah. I wish we have so many more people like all of you, I'm telling you. And I must thank Dr. Shrey for giving me your contact details. संजय जी हैं क्या अभी? जी जी जी, मैं हूँ इंदिरा जी, मैं हूँ। हाँ, तो संजय जी आप शेयर करें प्लीज। जी, तो सबसे पहले तो मैं माया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जितने अच्छे ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण क्या वो जमीन पे काम कर रहे हैं, और भारतीय और NRI दोनों तरह का उनका काम है, और एक गांव में भी करके उन्होंने एक इलाके के लिए किया। बहुत ही सराहनीय काम है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि योगेश जी के प्रेजेंटेशन और डॉक्टर सीताराम के प्रेजेंटेशंस के बाद
माया जी का प्रेजेंटेशन एक अपने तरह का, एक उनका प्रेजेंटेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने जो अपनी बात रखी वो एक अलग ही ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसको हमें लगता है पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। एज एक सोशल वर्कर होने के नाते, और हम लोग इस समय काफ़ी एक्टिवली ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, इसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसके दौरान जो पिछले बार और अब के बीच में सबसे बड़ी चुनौती है, ये है कि पिछले बार पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओज, धार्मिक संस्थाएं इतने बड़े पैमाने पर इस बीमारी से निपटने के लिए लोगों को लगे थे, क्योंकि पिछले बार समस्या थी जो लोग आ रहे थे उनके लिए भोजन, पानी और दूसरे तरह की। लेकिन इस बार कोई भी आपको, कोई भी अगर एकाध आदमी रेयर है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत एकाध लोग ही हैं जो इस तरह से अभी काम कर रहे हैं। नहीं, बाकी के सारे लोग घर में दुख गए हैं, क्योंकि उनको इतना डर है कोरोना के कारण। कैजुअलिटी रेट बहुत है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो इफ़ेक्ट डाल रहा है, उस इफ़ेक्ट डालने के प्रभाव को अगर हम देखें तो इन दिनों कोरोना में मैं जहाँ बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों के बीच का इलाका है, और मैं दोनों इलाके की बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो उसमें से 25 से 30 लोग निकल रहे हैं। ये पॉजिटिविटी रेट है। पिछले 2-3 दिन में कुछ कम होने की बात हुई है, लेकिन हम जिस शहर में रहते हैं झांसी, वहाँ ऐसा है नहीं। दूसरा, इस बार मोर्टेलिटी रेट बहुत है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तीसरी एक और बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि ऑक्सीजन और हॉस्पिटल ये है नहीं, इससे लोगों में बहुत डर है। चौथी बात जो है वो ये है कि सरकारें इस बार लॉकडाउन का जो एक नाटक कर रही हैं, कभी बंद भी कर रही हैं, कभी खोल रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन क्या है। और मध्य प्रदेश में तो जिस तरह की हालत है वो अभी ये कि पिछले 1 महीने से लगभग ये सब चल रहा है, वहाँ बड़े पैमाने पे कालाबाजारी शुरू हो गई है। लोगों को गाँव में दुकानें बंद हैं तो चीनी, नमक, तेल ये सब इतने महँगे मिल रहे हैं, इससे समाज का अंतिम व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने, हम यहाँ पे बताएँगे कि हम जिस ऑर्गेनाइज़ेशन से परमार्थ इस समय जो काम कर रहा है, वो 3 तरह के काम कर रहा है। एक तो मैसिव अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं, जो हम लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन, जैसा माया जी ने भी कहा कि वो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। गाँव में वैक्सीनेशन के लिए लोग किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। लेकिन हमने अभी यूपी में पिछले दिनों ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक कैंपेन शुरू किया था, और उस कैंपेन को गवर्नमेंट को डिस्कस किया। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ ने उस पे काफ़ी संज्ञान लेते हुए उस कैंपेन को अभी जो किया वो ये किया कि उन्होंने पूरे यूपी में गाँव-गाँव में 5 दिन तक लोगों का टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग, क्योंकि इस बार कोरोना गाँव में भी है। पिछले बार गाँव में बिल्कुल नहीं था, शहरों में था। इस बार लोग हर घर में कोई ना कोई बीमार है, और वो सिम्पटम्स वही हैं, बुखार, जुकाम, खाँसी, और लोग उसकी जाँच करा नहीं रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियों के बीच में जो हालात हैं, इन हालातों के बीच में ये टेस्टिंग वाला अभियान आज से शुरू हो गया है। गाँव में जिन लोगों के टेस्टिंग के बाद ऐसे निकलेंगे, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर और ये सब बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ तो लोगों के सामने ज़िंदगी बचाने का है, दूसरा उनके लिए जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं। मैं एक मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक केस स्टडी जैसी एक आधे मिनट में आपको शेयर करना चाहेंगे। वहाँ पे एक सामान्य प्रक्रिया है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति अगर पॉज़िटिव निकल आया तो उस पूरे से इलाके को एक कंटेनमेंट ज़ोन में तब्दील करके 2 पुलिस वाले बिठा दिए जाते हैं। एक घर में एक लोग ऐसे निकल आए, अब वो जब निकले तो पूरे घर के लोगों को चारों तरफ से घेर दिया। अब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। अब वो पीने के लिए पानी नहीं थी बस, और वो सौभाग्य से उसने किसी तरह हमारे कार्यकर्ता को फ़ोन किया, कार्यकर्ता ने सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो किसी तरह भागते हुए 2 घड़े पानी लेके गया। तब तक पता चला कि उसके 10 जानवर भी हैं, जिनको भी किसी ने पानी नहीं पिलाया। तो जिस तरह से ये जो चल रहा है कि एक तरह से कि हम चैन तोड़ने के चक्कर में लोगों को एक कमरे में बंद कर दे रहे हैं, और उनके जो और बाकी भोजन और पानी ये सब चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा संकट जो है वो इस समय पानी का संकट बड़े पैमाने पे हो गया, खासतौर से जिनके घरों में लोग क्वारंटाइन हैं, उनके यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और सरकार के लेवल पे अभी ज़्यादातर जो फोकस है वो फोकस ये है कि हम लॉकडाउन के अनुपालन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े
तौर पे कह रहे हैं कि गांव के लोग खुद में आत्मानुशासन का पालन कर रहे हैं। आत्मानुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके सामने तो मजबूरी है कि उनको तो जो उनके समय से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, तो लोग तो मजबूरी में उस तरह से जी रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, इन हालातों के बीच में हम लोगों ने तय किया है, एक तो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, दूसरा हमने कुछ इस तरह के जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ न्यूट्रिशन किट्स देने का काम कर रहे हैं, और मेडिसिन किट्स भी बनाए हैं, मेडिसिन किट्स दे रहे हैं। और हमारा जो जल सहेली का कैडर है उनको हमने ऑक्सीमीटर, जो इस समय सबसे बड़ा शॉर्टेज है, ऑक्सीमीटर और खासतौर से थर्मल स्क्रीनिंग, ये 2 चीज़ें लगाने के को दिया है, और कोशिश की है कि वो सैनिटाइज करके उसको ठीक से उपयोग कर सकें और लोगों को ये बता सकें कि आपका टेम्परेचर ये है, आपका ऑक्सीजन लेवल ये है। तो ये एक इस तरह का इनिशिएटिव्स कर रहे हैं हम लोग। और गांव के स्तर पे जो अभी परिस्थितियां हैं वो ये है, मंडियां बंद हैं, लोगों का गेहूं नहीं बिक रहा है, अनाज की बहुत दिक्कत है, क्रय शक्ति बड़े पैमाने पे प्रभावित हो गई है लोगों के सामने। अभी इस समय अगर ये 1 महीने तक और स्थिति रही तो कोरोना तो है ही है, लेकिन दूसरे संकट भी लोगों के सामने बड़े पैमाने पे खड़े हुए हैं। इस बीच में हम पूरी कोशिश में इस बात का के लिए हैं कि गांव में जो ये अंधविश्वास है, लोग कोरोना के बुखार को भी लोग मानते हैं कि वो चेचक है या कुछ है। गांव में लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, कहीं पे लोग पूजा कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। तो ये जो भ्रांतियां और जो अलग अलग तरह के दकियानूसी या जो ये आडंबर हैं, इनको हटाने के लिए भी एक तरह से हम लोग अलग तरह से आईसी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इस समय हमारे 10 टीम 6 जिलों में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर हमने खोला है, हर गांव से लोग आ रहे हैं, उनको फिर हेल्थ के साथ कैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे उनको ऑक्सीजन लेवल का कहाँ पे मिल सकता है, आईसीयू कहाँ पे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें बताने में लोगों की मदद कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क में है, और अभी इसके साथ साथ मीडिया में भी और जहाँ जहाँ पे भी सोशल मीडिया का जो फोरम है उसका उपयोग करके भी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पे आए हैं, उनके सबके सामने आजीविका का संकट है, और ऐसे संकट के बीच में अभी नरेगा भी बंद है, तमाम तरह के अवसर नहीं है। लोगों में एक तरह से इस बार जिंदगी से जो डर है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले बार के कोविड और इस बार के कोविड में बहुत कुछ अंतर है। इस बार सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उसी तरह की ज़रूरत है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खजुराहो में एक ये ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है उसको लगा के कुछ लोगों की मदद कर सकें, उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हमें वो कुछ मिल जाएंगे तो हम वहाँ पे लोगों के लिए मदद के लिए कुछ काम शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू संजय फॉर शेयरिंग। अब मैं थैंक यू बोलूं क्या बोलूं, ऐसी स्थिति में समझ भी नहीं आती, पर आपने जमीनी स्तर पे क्या जो हकीकत है उसके बारे में हम सबको बताया। अब मैं हमारे साथ प्रतिभा जुड़ गई है, मैं प्रतिभा को रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी बात हम सबके सामने रखे। स्थिति क्या है, और प्रतिभा पिछले साल, प्रतिभा की मोर्चा ने पिछले साल भी कुछ किया और इस साल भी कुछ कर रहे हैं, तो प्रतिभा ओवर टू यू, प्लीज शेयर। थैंक यू इंदिरा ताई। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया सुनाई दे रही है। ठीक है। मैं वीडियो इसलिए नहीं चालू करना चाहती क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहां पर इंटरनेट बहुत वीक है और फिर वीडियोस के बाद बात करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर रही हूँ। सबको जिंदाबाद। अभी जितने साथियों ने अपनी बात रखी बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे भी काफी सारी चीजें उससे सीखने के लिए और अपने जो काम कर रही हूँ उसमें और सुधारना करने के लिए काफी चीजें मुझे अभी समझ में आ रही है। मैं ये रूरल रिलेटिव जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं ये जो दूसरी फेज अभी आई हुई है, इस फेज में जिस तरह से हम लोग पूरा फेस कर रहे हैं, एक अलग प्रकार का डरावना, अलग प्रकार का डर, और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की जरूरत, वो बहुत जिस प्रकार से अभी हम लोग दिक्कत सह रहे हैं, उससे फर्स्ट पेज काफी अच्छी थी ये कहने का अभी मन हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति अभी की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट पेज में जब बंबई से, अहमदाबाद से, सूरत से 5 राज्य
यूपी, बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ के मजदूर हमारे इलाके से जा रहे थे, तब हमने उनको खाना खिलाना, उनके हेल्थ, छोटा छोटा हेल्थ चेकअप करना, बहुत ये तो नहीं कर सकते थे। एक महिला तो हमारे सामने सूरत से पैदल आई और जलगांव में हमारे यहाँ डिलीवरी हो गई, ऐसी परिस्थिति रास्ते में ही, और उसको लेकर हम लोग लेके आए। तब लग रहा था कि इससे बुरी चीज और दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। और उसी वक्त हमारे यहाँ पिछले साल महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जब पहला कोविड पेशेंट अप्रैल महीने में आया, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी सरकार की कि कुछ तैयारियां नहीं, कुछ नहीं, बहुत डरा हुआ माहौल था। हमारे ही नावी करके एक गांव है, उस गांव की एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र 82 साल थी, जिसका ऑक्सीजन लेवल 80 था, वो उसको सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने भर्ती किया था। और उसका बेटा जो था वो नासिक में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती था। उसकी बहू जो थी उसकी डेथ हो चुकी थी कोरोना के कारण, और वो भर्ती थी। वो एक दिन अचानक से पता चला, उसके पोते का पुणे से फोन आया कि मेरी दादी का कुछ पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, आप जरा सिविल में जाके देखिए। हमने जब सिविल में जाके देखा और उनको कहा, तो उन्होंने कहा वो अब्सकॉन्ड हो गई है, वो भाग गई है। अब 82 साल की महिला जिसका ऑक्सीजन लेवल 80 है, वो पहले माले से उतरकर पैदल कहाँ भाग सकती है? ये बहुत पूछने के बाद भी कोई भी सिविल हॉस्पिटल का बंदा बताने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे करने, पुलिस में अर्जी देने के बावजूद भी कोई हमें ये कह रहा था कि नहीं वो भाग गई है, आपको मालूम नहीं, वो किसी रिश्तेदार की यहाँ ढूंढो। और 10वें दिन के बाद दुर्भाग्य से उसकी डेड बॉडी हमें बाथरूम से मिली, वो भी सिविल हॉस्पिटल के। ये जब हुआ तो हमें बहुत, ये बात हमारे सबके लिए बहुत शॉकिंग थी। जिले में एक प्रकार का डरावना सा माहौल हो गया था। और तब हम लोगों ने इनिशिएटिव लेकर इन सब चीजों को कैसे हम लोग इससे उबर सकते, इसके हमने 3 लेवल पर ये किया। एक तो हमने सोचा कि हम न्यायालय जाएंगे, इसका न्याय मांगेंगे, जिस तरह से अन्याय हुआ इसके लिए, और सरकार ने क्या क्या दुरुस्ती करनी चाहिए इसके लिए एक पूरा न्याय व्यवस्था के साथ लड़ेंगे। दूसरा, हम एडवोकेसी करेंगे सरकार के साथ कि हम लोगों को क्या चाहिए और किस प्रकार से सरकार से हम अपनी डिमांड रखेंगे कि हम लोगों को ये चाहिए। और तीसरा, जैसे गांधी कहते हैं कि रचनात्मक काम और संघर्ष एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर चलनी चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरे के बगैर ज्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं होती है। तो ये मानकर हम लोगों ने दूसरी तरफ काम शुरू किया जमीनी स्तर पर, प्रत्यक्ष रचनात्मक रूप से। हमारा संगठन जो है लोक संघर्ष मोर्चा नैसर्गिक संसाधनों की लड़ाई जरूर लड़ता है, पर उसी के साथ साथ माल न्यूट्रिशन और वहां पर की हेल्थ सिस्टम कैसे सुधारी जाए इसके लिए भी काम करता है। इसलिए गांव-गांव में जो कस्बों में जो पीएससी सेंटर होता है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर जो होते हैं हेल्थ सेंटर, उनपे हम लोगों ने पिछले 3 साल से लोगों की निगरानी समिति बनाई हुई है। हर गांव के, अगर 10 गांव के मिलके एक पीएससी सेंटर होता है गवर्नमेंट का, उस पीएससी सेंटर पर हर गांव से 2 पुरुष 2 महिला मिला के हम लोग पूरे इलाके की एक निगरानी सिस्टम कमेटी बनाते हैं। उसको कहते हैं मराठी में लोकाधारित देखरेख प्रकल्प, हिंदी में हम कहेंगे लोकाधारित निगरानी समिति। वो समिति वहां पर किस प्रकार की दवा है, डॉक्टर कैसे क्या कर रहे हैं, समस्या क्या होती है, उस पूरा का एक जायजा लेते हैं। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में आरोग्य सखी नाम की एक सरकारी तौर पर, जैसे छत्तीसगढ़ में सहेली थी, उस तरह की हेल्थ दोस्त, जिसको मराठी में आरोग्य सखी बनाते हैं, वो हम लोगों ने आरोग्य सखी यहाँ पर बनाई हुई है। उस आरोग्य सखी के साथ लोक संघर्ष मोर्चा की बेयर फुटेड एक आरोग्य सखी, जिसको ट्रेनिंग बहुत नहीं, छोटा छोटा ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है, वो गांव में आरोग्य की स्थिति क्या है वो उसको जांच करती, वो हम लोगों ने पहले से तैयार किया था। इन लोगों को कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों ने उस वक्त उनको ये किया हुआ था, मतलब ट्रेनिंग दी हुई है, और उस तरह से वो ट्रेनिंग में वो काम करती है। अगर हम लोग देखें तो पिछली बार नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ, धड़गांव और तलोदा, इन इलाके में कुल मिला के 25-25
पेशेंट भी ब्लॉक में नहीं थे। इस बार अगर ये स्थिति देखें तो ये बहुत भयानक है और ये आंकड़े सैकड़ों में बढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने एक तरफ ये जो बेयर फुटेड डॉक्टर या सहेलिया हम बोले, नर्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो सहेलिया जो है उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग देके रखे कि किस तरह से कोरोना के, क्योंकि अभी सिम्टम बदल चुके हैं। अभी सिर्फ टेम्परेचर आना और खांसी होना, गले में ये होना ये नहीं है। अभी डिसेंट्री भी हो तो आपको कोरोना का ये हो सकता है। अभी आपका बहुत सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और टेम्परेचर आपको लास्ट में आएगा 90 डेज में, 90 दिन पर। तो इसलिए वो ट्रेनिंग हम लोगों ने अभी कैसे ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर और ये करना चाहिए। और मैंने जो बताया कि वो महिला की केस जो हमने हाई कोर्ट में डाली हुई थी, उस केस में हम जीत गए। उस महिला के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। उसके साथ साथ सरकार को ये भी दिया गया कि सारे रूरल एरिया में ये जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इन लोगों को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आपको देना होगा और आपको उनके साथ काम करना होगा। उसी के साथ साथ एक डेथ कमेटी भी आपको बनानी होगी कि क्यों डेथ हो रही है, क्या किस प्रकार से, क्या रीजन है, वो भी बनाना होगा। और कहीं भी निग्लेजेंस हुआ होगा तो वो कमेटी भी आपको बनानी होगी। तो हमारे हर PSC लेवल पर, RH लेवल पर, मतलब रूरल हेल्थ सेंटर पर और फिर सिविल ये पर ये कमिटियां बनी हुई है और कलेक्टर के अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी हुई है। तो उसमें भी हम लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं ये करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने अभी जिस प्रकार से माहौल उभरा है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइबल इलाके में भी काफी तौर पर ये जो जिस प्रकार से केसेस आ रही है, तो PSC लेवल पर भी ऑक्सीजन, जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको बाईपैक या उसके बाद का जो भी NAV या फिर वेंटिलेटर, इसकी जरूरत नहीं, इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग PSC लेवल पर जो डॉक्टर है उनको ट्रेन करके उनके पास ऑक्सीजन हर एक PSC में 20-20 बेड उसके बनाए गए हैं। हम लोगों ने, लोक संघर्ष मोर्चा ने कोविड केयर सेंटर चलाया है जिसमें 120 बेड है, जिसमें असिम्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं वो हम लोग 100 के करीब लेते हैं और 20 जो है वो ऑक्सीजन बेड के लेते हैं, जिसके लिए वॉलंटरी हमारे पास 4 डॉक्टर है, 16 नर्सेस है, 8 वार्ड बॉय है और सफाई कामगार और ये सब लोग हैं, जिसके लिए पूरा ही चंदा जो है, जो लोग इकट्ठा करके उसको मदद करते हैं, खाने के लिए व्यवस्था भी उस प्रकार से ही कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार के साथ मिला के ये सब चीजें वहां पर करते हैं। एक हमारे गांव में बेयर फुटेड सहेलियां है, हमारे यहाँ पर जो वैदू है उनके साथ हमने किया है। और फिर बीच में हमें ये समझ में आया कि सैनिटाइजर के नाम पर बहुत ज्यादा गांव में सैनिटाइज जा रहा है उस प्रकार से, तो हमने महुआ के फूलों से सैनिटाइज बनाने का एक तरीका ढूंढा, वो बहुत सक्सेसफुल रहा और गांव में लोग उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी को एक प्रक्रिया करते हुए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं गांव में। तो ये एक चीजें गांव में हो रही है। तो गांव अभी फेस तो बहुत कर रहे हैं, उस तरह का आपने कहा, उस तरह का बहुत अंधविश्वास जरूर है, पर उससे उठकर जो गांव की लड़कियां और युवा है, इन लोगों ने, और ये जो लोक आधारित देखरेख कमेटी है, इसने गांव-गांव में प्रचार किया और इसलिए हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया में और रूरल जो संगठन काम करता है उस एरिया में 80% अगर सरकार के पास ही अगर वैक्सीनेशन ना हो तो अलग बात है, वो खत्म हो जा रही है, वो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो अलग बात है, पर उसके बगैर अगर जितनी है वो बाकायदा ली जाती है, उसके लिए हमारी सरकारी यंत्रणा और संगठन के लोग और गांव की जो ग्राम पंचायतें मिलके एक दूसरे के विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो हमने की, जो आपको कहा कि हमने जो एडवोकेसी की है, उसमें हम लोगों ने जितने भी ट्राइबल इलाके हैं उनको, अगर कोई रेमडेसिविर पर विश्वास नहीं रखता और कोई बहुत लोग रखते, अलग अलग उसके बारे में चर्चा जरूर हो सकती है, पर ऐसी दवाइयां जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है और पेशेंट को बाहर से लानी पड़ती है, उसके लिए हर जो ट्राइबल का ब्लॉक है, प्रोजेक्ट ऑफिस है ट्राइबल का, उसके यहाँ 20 लाख रुपए की वहां पर सरकार ने
तरतूद की हुई है जो हम लोग करें। दूसरा हम लोगों ने ये भी किया है कि जितने भी ट्राइबल है उनके लिए खाउटी अनुदान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि लोगों को जीने के लिए पैसे, तो कैश 4,000 रुपए और 2,000 रुपए का किराना वो हर इसके पास जाए। दूसरा हम लोगों ने सरकार से ये भी कर लिया है कि इस साल जितने भी जिसके पास आदिवासी है और गरीब है, जिनकी लिस्ट सरकार ने बनाई हुई है, हमने मिलकर पिछले पूरे लॉकडाउन के वक्त उन सबको राशन जो है वो ये 2 महीने लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें मुफ्त जाएगा, उसमें सरकार किसी से भी पैसे नहीं लेंगे। और तहसील विभाग पर जब पेशेंट और उसके रिश्तेदार जाते हैं तो उनको शिव भोजन जो है, जो सरकार की स्कीम है कि उनको वहां पर खाना मुफ्त दिया जाएगा, उस तरह से एक पूरा नियोजन हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ मनरेगा के लिए समृद्ध गांव योजना, हम ये समझ रहे हैं कि कितना भी लॉकडाउन करिए पर लोगों को अगर जीने के लिए ये नहीं होगा, साधन नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए एक तो लोक संघर्ष मोर्चा का कोविड केयर सेंटर है, दूसरा डेडिकेटेड कोविड सेंटर है जिसमें 20 बेड है, पहले में 100 बेड है। तीसरा हम लोग गांव-गांव में डॉक्टर, उनकी कमेटी और बेयर फुटेड हमारी आरोग्य दोस्त जिसको सखी बोलते हैं हम, वो सखी और गांव में लोक आधारित देखरेख कमेटी बना के ये प्लान हम लोग आगे कर रहे हैं। तीसरी तरफ मनरेगा के साथ एक पूरी गांव में जो कमेटी बनती है रोजगार हमी योजना के लिए, महात्मा गांधी नरेगा के लिए, उस कमेटी को एक्टिवेट कर क्या हम लोग फिजिकल डिस्टेंस को ये करते हुए किस तरह से हम लोग काम करें। तो इसका एक पूरा ही प्लान हम लोगों ने बनाया है। और इस बार पूरे लॉकडाउन में भी चाहे कुछ भी हो, पर हम लोग इस वक्त एक फैमिली को हमारे यहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिला है। एक गांव को जंगल का हिस्सा करीब 200 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर तक, तो उसमें जहां पर रिग्रेटेड जंगल है उस जंगल को फिर से खड़ा करने के लिए मनरेगा के तहत हम लोग प्लांटेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। और पिछले साल हमने 50,000 लोगों को इसके तहत रोजगार दिया था। हमने मतलब लोगों ने ही खुद ने अपने गांव में किया था, हमको देने वाले लोग खुद जो स्वशासन का नारा देते वो उन्होंने खुद ही अपने गांव में प्लान किया था। उनकी अपनी एक गांव वन व्यवस्थापन समिति है, उस समिति ने प्लान किया था और उस समिति के तहत हम लोगों ने सिर्फ सरकार और उनके बीच में एक दुआ बनने की कोशिश की है और उसके साथ आगे हम लोगों ने काम किया है। संगठन के अलावा के गांव में क्या क्या दिक्कत है और क्या करना चाहिए इसके बारे में अगले सत्र में जरूर बोलूंगी। पर ये 3 स्तर पर, एक तरफ न्याय व्यवस्था को चुनौती देकर लोगों को न्याय लेने के लिए एक हम लोगों ने वहां से ऑर्डर निकालवाई, दूसरा एडवोकेसी के तहत हम लोगों ने सरकार से कुछ चीजें करी और तीसरा खुद रचनात्मक काम करते हुए हम लोगों ने इस कोरोना के संकट को दो हाथ करने की ठान ली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा। आपने मतलब राइट फ्रॉम इमीडिएट चैलेंजेस ऑफ टैकलिंग कोविड टू लुकिंग एट लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों ने कोशिश करी है, एक पैकेज एक तरह से बनाने की कोशिश करी है और सरकार के साथ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कभी आपको फुर्सत मिले तो इसके बारे में अगर आप बुलेट पॉइंट्स भी लिख के देना तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए और बाकी लोगों को इनकरेज के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं स्मरणिता को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने बहुत बातें सुनी स्मरणिता, फ्रॉम एवरीबडी, बैड सीन एंड गुड एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, लॉट ऑफ होप. What do you think from the from where you come and from Indian development review perspective? What do you think are some of the things you can do or what we need to do? Over to you. Thank you, Indira. And I should really thank you for inviting me because I think the last 1 hour has been so enlightening. So for people who are not familiar, I'm part of India Development Review, and it's a media platform that is focuses only on development. And I think as part of our job, it involves talking to a lot of people, reading, speaking to people. But the entire conversation till today has always, over the last, 1 month, especially in the last 2 weeks, has been very urban centric, right? It's been very Bombay, Delhi,
Bangalore maybe. The conversations are all about, oxygen cylinders, lack of hospital beds. So it was really, really good to kind of listen to all the panelists here, because all of you all are so immersed in the ground. And there's a perspective of rural India that we are not seeing, in mainstream media, right? So all these things you're talking about, the fear of, vaccination, the belief that this is not going to happen to us, the poor infrastructure, the fact that the awareness campaigns have to change from last time to this time. None of these conversations are happening, in like mainstream media. And I think it's so important to kind of actually amplify some of this, because most of India is rural India, right? And if you don't address this now, it's just, whether in the form of like, funding support, whether in the form of infrastructure, whether in the form of just attention from, policymakers or other institutions, it's just going to, snowball more, despite all of y'all, working on the ground. So I think just, to put it out there, it's been huge learning to understand what the challenges are. And I think what at least I saw is, while some of the challenges are same, but across different districts, people in different regions, different districts are reacting differently to the same problem, in different ways. And therefore the solutions that each one of y'all are coming up with is very, custom to the area, to what the need is there. In terms of what IDR or India Development Review is doing, we realize that the value that we can provide is actually, because so many people read us and because a lot of our articles gets republished on mainstream media. One of the things we thought we do is actually two things we're doing, right? One is we're trying to get some of these stories, some of the things that are happening in, smaller towns, in districts, in villages, to this platform, so that, larger audiences which typically tend to be, English speaking, urban, maybe, donor oriented, can actually get a sense of what's happening outside like the large cities. The second, what we've done, and we've already started this, is we put this page together called support nonprofits, right? So we've asked a lot of nonprofits across India to fill in a form which says, tell us what your need is, right? So tell us, where do you operate? What is the work that you do? And what is your current need, right? Do you need funding? Do you need volunteers? Do you need any other kind of support? And in the last 4 days, we've already had 100 such organizations put up their request. And I think what we saw interestingly was the dissonance, the difference between what everyone wants to fund and what organizations on the ground are asking for funding, right? So just like all of you all, whereas because the whole attention, the whole conversation, amongst television, social media, even traditional media has been around oxygen. Everybody wants to fund either oxygen cylinders, oxygen concentrators, or something, or maybe drugs and medicines at most, right? But a lot of the nonprofits who are working, and these are small nonprofits, these are not the large ones, working in specific districts, some are in specific blocks. A lot of the support they want is for 3 things, right? One is awareness building, right? Whether it's awareness building around, the need to get tested, the need to get vaccinated, the need to, say, how are these symptoms playing out this year versus last year? So a lot of the demand for funding support is on that. The second is food. So people are saying, there is a dearth of like, a lot of people can't access rations. Food is a problem. Like one of your panelists said, right? If you're in a containment zone, where how are you going to access water and food? So support to provide, that kind of support. The other is livelihood. So again, NGOs are saying livelihoods are at risk. Incomes, people have come, some of them have come back from large cities, and again, income is a problem. So we want to be able to provide the community support on livelihoods and things like, counseling, right? Whether it's counseling around, whether it's emotional support, but also counseling around livelihoods, around, again, the health issues, how, COVID is going to manifest itself. So that's the thing we're seeing, what people want to fund and what the need is. There is this big gap. And we are hoping that, if we can carry some of the stories that, all of you all have spoken about, in short snippets, maybe it'll tell the world that, the large part of India needs help here, right? These are the things that we are struggling with or we are grappling with, right? So maybe there is a need to think longer term. So yeah, so that's, that's just to give you a sense of where all the, noise is, and you all are where all the, actually work and action is. And there should be some way to marry the two if we can. Thank you, Smaranita, for sharing your thoughts and ideas.
And I think we are looking at you to help us kind of bridge this gap between the what's required and what's actually coming in. And I'm sure all the panelists would be really happy if you could amplify their voice, because that will help them, you know, do their work and to expand the scale and deepen the work that they're doing. I think we've taken more time as anticipated. So just quickly, we'll go for the second and the third round, where quickly we will just say, what do you think that we can, moving forward from here, what is it that we can do? What is it this platform of all of us together, and maybe other people can join in, maybe IMPRI, Tarun Bharat Sangh, Parmat, whoever would want to join in. I remain committed to doing whatever I can to take this forward, and I know IMPRI is also committed. So we can just have a second round as to what do you think, based on what we have listened, are some of the key things that we can, we can do to take this take this forward, so that we can quickly bridge the gap and actually get more action on the ground. And about 3 or 4 minutes to everybody, and a little extra time to Yogesh ji, because it's important we listen to the other slides that he has prepared. So we can maybe start with Maya this time. Yeah, definitely. Can you hear me? Yes, ma'am. Please go ahead. Yeah, it's really nice connecting all the NGOs and the like-minded people for this second wave. I think that being in the rural, village people needs more help. And what kind of help that I had realized over here is mostly the doctor and the consultation and the medical, in terms of the medicines and the medical supply. So this is like really integral part. I am imagining, like, at the adjacent villages, यदि उनके गांव में कोई क्लिनिक नहीं है या डॉक्टर नहीं है, तो वो अपने आपस में इतने घबरा जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए उनको एफर्ट के अलावा उनको पैसे चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग ये जरूर सुन रहे होंगे कि हर जगह जैसे ही अभी ये कोविड शुरू हुआ है और हर जगह काला बाजारी शुरू हो गई है, चाहे आप एम्बुलेंस की बात करें या आप दवाइयों की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वो इतना ज़्यादा उनके पास, मतलब बजट तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं कि यूएस में एक फ्रेंड है फाल्गुनी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ से कैसे हम मदद कर सकते हैं गांव की, क्योंकि शहर में तो वो कई लोग कैसे भी कनेक्टेड रहते हैं, डॉक्टर्स के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लेकिन गांव के लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ऑनलाइन ट्विटर पे, फेसबुक पे कैंपेन शुरू किया कि जो डॉक्टर ओवरसीज हैं, जैसे यूएस में अभी उतना कोविड नहीं है या बाकी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन इंडिया में एकदम से सबसे ज़्यादा हुआ अभी दो महीने में। तो इंडिया के लोगों को ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट ऑप्शन है जब बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, लेकिन अर्ली सिम्टम्स में उनको क्या हेल्प चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया और उसमें सारे डॉक्टर्स ने अपने अपने टाइम, अपनी अपनी स्पेशलिटी वो सब शेयर किया। और हम क्या करते हैं उनको कि जैसे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है किसी पेशेंट की कि ये पेशेंट फला गांव में इतना रिमोट है कि उनके पास पैसे भी नहीं है और उनको एक घर में कोई ले जाने के लिए पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए भी आपके साथ में कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सारे चीज़ों को ठीक से कर पाए, नहीं तो हर कोई फुटपाथ पे ही रह जाता है। तो ऐसे लोगों को वो खुद फ़ोन करते हैं, उनसे मिनिमम जो उनके पैरामीटर हैं जो उन्होंने पहले डॉक्टर्स को दिखाए होते हैं वो देखते हैं, उसके अलावा उनको क्या मॉनिटरिंग चाहिए वो हम इस तरह से लॉजिस्टिक हेल्प के थ्रू उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे क्लिनिक में भी अभी 5 बजे के बाद में जो ऑनलाइन डॉक्टर्स नहीं बैठेंगे, तो और भी जो भी डॉक्टर्स ओवरसीज हैं, जैसे अभी यूएस में मॉर्निंग होगा, यूके में भी मॉर्निंग होगा, और भी तो जो कंट्री है वहाँ पे सबका अलग अलग टाइम जोन है। तो एक तरह से हम इंडिया को सच में 24 घंटे मदद कर सकते हैं।
क्योंकि आपने शुरुआत के 3 दिन किसी भी मरीज में यदि इन्वेस्ट किया है कि उसको सही मेडिकेशन, सही मॉनिटरिंग और आइसोलेशन और उससे बात कर ली, तो वो मरीज अपने आप में आधा ठीक हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी डिजास्टर है कि हम ऑक्सीजन मांग मांग के, तो शायद इसका पूरा समाधान नहीं है, लेकिन अर्ली सिम्टम्स को हम कैसे प्रिवेंट करें, मतलब कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि हम जहाँ पे मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, वहाँ उनको एनकरेज करें। अभी जो डबल मास्क का एक अभी नया कॉन्सेप्ट है कि सच में वो लाइफ सेवर है, तो उससे ही आपकी कितनी आधी जो इन्फेक्शन है वो कम होता है। या आप किसी भी पब्लिक में जाते हैं तो उनको वो अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ही मरीज आता है तो उसको पता है हॉस्पिटल में है, तो वो बस ऐसे लगा रखता है क्योंकि उसके पास मास्क नहीं है, उसके पास गंदा सा कपड़ा है, वो खेत से चल के आ रहा है, उसको पता है कि मतलब मुझे बस यही चीजें पता है तो मैं अस्पताल जाऊंगा, मतलब मेरी नाक बस बंद होनी चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें भी मुझे लगता है जो लोग ग्राउंड पे हैं उनके वॉलंटियर्स को, उनको स्टाफ को ये चीज उनको बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है कि भाई ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी साल तक एम्स में काम किया दिल्ली में, उसके बाद यूएस में भी सारे मेडिकल रिसर्च में रही हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर ये नया अनुभव है जो मैं खुद भी सीख रही हूँ डॉक्टर से भी। हमारे डॉक्टर हमसे पूछते हैं, तो अब पहली बार मैं एक डॉक्टर की तरह मतलब काम कर रही हूँ कि सब सारे मेजर्स लेके सारी दवाइयाँ वो सब करना। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है यहाँ पर। तो आई थिंक ये सब चीज़ें ग्राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको भी हम सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो उनको मतलब सच में फाइनेंस की ज़रूरत है, तभी जाके वो दवा खाने तक जाएंगे या दवाई खरीदेंगे। क्योंकि अभी हॉस्पिटल में जहाँ हर चीज़ फ्री मिलता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो एक तरह से उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, या उनको डर है कि यहाँ पे हमें डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास में इतनी लंबी लाइन है और वो भी अपना एक डिस्टेंस मेजर करके फटाफट सेम मेडिसिन, सेम रिकमेंडेशन, सारी चीज़ें सेम सेम चल रही। तो अब उनके पास में यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो किसानी या मजदूर वर्ग है, हमने एक चीज़ ये भी नोटिस किया कि जो लोग शहर जाते हैं दिखाने, वो बहुत बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। तो अब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें 10 तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शंस, बॉटल, ड्रिप सब कुछ है, लेकिन वो पेशेंट जो है वो ये देखता है कि आज अभी मेरे पास कितने पैसे हैं। उसके पास यदि 500 रुपए होंगे तो वो बस दुकान वाले से बोलेगा, फार्मेसी से, कि मुझे सिर्फ 500 रुपए की दे दो। तो फार्मेसी वाला ये सोचेगा पहले कैलकुलेशन करके ये दवाई आ जाएगी। अब ऐसे में यदि मरीज को आधा कोर्स किया है या नहीं किया है तो वो कैसे ठीक होगा। तो आई थिंक इस तरह से भी और हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस तरह के लोगों को हेल्प करें और सब लोग साथ आएँ। तो आई थिंक ये सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत बड़ा चेंज है हमारे यहाँ पे अभी तो फिलहाल। तो यही है मेरा अभी ग्राउंड का एक्सपीरियंस। अब बाकी लोगों का भी मैं सुनूंगी यहाँ पर। Indra ma'am, please unmute yourself. Yes. Yeah, Maya, I had a question for you. If there are people here from different organizations here, and there could be others. If we want to explore this telemedicine thing with you, is there some scope? Can we have another session around that? If say different organizations feel the need, they also want to access telemedicine, can we have another discussion with you on this? Yeah, absolutely. Actually, Okay, ये मुझे ऐसा लगता है कि इतना वाइटल है। आज यदि हर गांव में यदि ये बहुत छोटा सा सेटअप और बहुत कम कीमत में लगता है, लाइक एक बार का इन्वेस्टमेंट इसमें आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, सब कुछ मिला के। यदि गवर्नमेंट ही इसको इनिशिएट करे तो काफी हद तक हम आज कोरोना की इतनी खराब समस्या या हालत हम नहीं देख रहे होते। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ लगा रही, जहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल है। भोपाल में हॉस्पिटल है, वहाँ टेलीमेडिसिन लगा रहे हैं। जबलपुर में हॉस्पिटल, वहाँ लगा रहे हैं। दिल्ली, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें वहाँ ले जाना है जहाँ डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली वी कैन डू दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं संजय को रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपनी बात रखे। संजय। जी इंदिरा जी,
मुझे हाँ। लग रहा है कि सेकंड राउंड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अभी हम कर क्या सकते हैं। और अभी पहले राउंड में तो सबने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि केस लोड कम हो जाए, केसेस कम निकलें, और धीरे से जिस तरह से कोरोना की ये जो लहर है, सेकंड वेव है, ये कुछ थोड़ी सी डाउन होगी। लेकिन इसके बाद के जो इश्यूज हैं वो अभी माया जी ने उसको बहुत कुछ एड्रेस किया कुछ हद तक। और अभी उनसे पहले समिंत्रा ने जो कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने रखी। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में हमें जो दूसरे इश्यूज हैं जिस पे दो वक्ताओं ने भी ध्यान दिया, और ख़ास तौर से मिसेस सेठी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि वाटर, फूड, इन अदर इसेंशियल सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दे शुड बी रिक्वायर्ड। उनको अगर हम कहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, और वो लोग इसमें जैसे सबसे ज़्यादा कोई अगर संकट में है तो प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि कहीं पर जो सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही वो एकदम हो नहीं रही है इस समय। प्राइवेट में तो बहुत कम है इस समय कोरोना टेस्ट। और ये है जो बच्चे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और ओपीडी लगभग लगभग सभी जगह की बंद हो गई हैं। तो हमें अभी और दूसरे आयामों की तरफ हमें काम करने की ज़रूरत होगी। तो मुझे लग रहा है कि लाइवलीहुड सपोर्ट, राशन सपोर्ट, और फिर इसके साथ साथ ये ख़ास तौर से अभी मई का महीना है, तो मई और जून में लास्ट में जाके बारिश का माहौल होता है। तो ये ख़ास तौर से जो हैंड पंप रिपेयर्स है, पाइपलाइन रिपेयर्स है, टैंकर के वाटर सप्लाई है, इन सब चीज़ों में और दूसरे लाइवलीहुड ऑप्शंस कैसे और बढ़ाए जा सकें, इस पे अभी बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। बिगिनिंग ए परमार्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम यही प्लान कर रहे हैं कि हर गांव में कैसे हम लोगों को कुछ उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकें, कुछ उनके गांव में पानी के भंडारण के काम हो सकें बरसात से पहले। तो ये सब चीज़ों पे भी हम लगातार सोच रहे हैं कि एक तरफ लोगों की ज़िंदगी बचानी है बीमारी से, एक तरफ लोगों की ज़िंदगी और तरह के भूख और पानी और कुपोषण, इन सब से भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ठीक है संजय, आप कह रहे हो कि अभी फिलहाल हम लोग इतना ये जो करंट क्राइसिस हमारे ऊपर है उसी में हम उलझ गए हैं कि इसके बाद क्या आगे नेक्स्ट क्या आने वाला है उसके बारे में भी कुछ सोचें। और आपने कुछ चीजें आपने सजेस्ट की है, लाइवलीहुड, राशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वगैरह। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद। अभी मैं योगेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बात रखें। थैंक यू इंदिरा जी। Arjun, you're sharing the screen, no? It should work now. Yes. Okay. ये जो अभी हमने अपने साथियों से सुना, जो इतने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और जितना एफर्ट ज़मीनी स्तर पर सब लोग कर रहे हैं, माया जी ने विशेष तौर से जो बिल्कुल स्वास्थ्य के संदर्भ में जो बातचीत रखी, जो कर पा रही हैं आप इन परिस्थितियों में, बहुत ही उसके लिए सभी को सलाम मेरी ओर से। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में। संजय जी ने विशेष तौर से जो है ना थोड़ा लॉन्ग टर्म और दूसरे परिस्थितियों से बातचीत रखी है। हमारा अभी भी फोकस जो है वो थोड़ा सा ये है कि इसको कैसे मैनेज करें। ये जो पूरा पेंडेमिक है और इसको एक डिजास्टर की तरह अगर हम देख रहे हैं, शायद ये नंबर्स कहना बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन रूरल एरियाज में जब ये बढ़ेगा तो अभी और तेजी से पहुंचेगा। वो जो नंबर्स हमें स्क्रीन पे दिखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारे जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट जो होते हैं उनके माध्यम से आते हैं, वो बहुत ही अलग है, और जो गांव की सिचुएशन है वो बहुत ही अलग है, या जो अनटेस्टेड केसेस हैं वो बहुत अलग हैं। So I think there is a complete mismatch of data that we see and what the ground reality is. So my sense is that तो वो तो देखना ही है जो आपने कहा
कि लोगों की लाइवलीहुड और सारी चीज़ों को, लेकिन इसके मैनेजमेंट को भी कैसे देखा जाए, जो स्थितियां हम दिल्ली और जगहों पे देख रहे हैं वो जिलों पर और ना हो सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कहने का कि तो मैंने उतना ही फोकस किया है, मैं पूरी तरह एग्री कर रहा हूँ अपने साथियों की तरफ से कि बहुत सारी और चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ये पिरामिड में मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसको अगर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट के तौर पर हम देखेंगे इस पूरे काम को एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो सबसे बड़ा पिरामिड का हिस्सा है वो विलेज लेवल आइसोलेशन सेंटर्स और कम्युनिटी लेवल या हाउस होल्ड लेवल आइसोलेशन और माइल्ड सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, जिसमें ग्राम पंचायत एज ए गवर्नमेंट, पंचायत बिकॉज समर्थन पंचायत के साथ लंबे समय से काम करती है, पंचायत हमें लगता है कि वो स्थानीय सरकार है, it is the local government, and local governments have responded in the last year also very proactively, providing ration to people, getting them PDS subsidized facilities, वो सारा कुछ उन्होंने किया था, उस वक्त लोकल लीडरशिप खड़ी हुई थी। तो एक बड़ा पिरामिड का हिस्सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो एक एरिया है जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर ये अच्छा मैनेज होता है तो एक तो लोड जो है वो PHC CHCs का काम होगा, and these are the places where people with moderate symptoms can be treated. Those who need some kind of oxygen support, they are hovering around 90, 88, and with little support they can be better as far as the oxygen saturation is concerned. तो वो उस तरह के लोगों के लिए मदद हो सकती है। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड अबव जो है वो फिर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। अगर हम इन तीनों हायरार्की पे सोचेंगे और काम करने की बात करेंगे तो शायद हम ये जो वर्कलोड है या जो पेशेंट लोड है ऑन हायर सिस्टम्स वो कम होगा। हम रूरल एरियाज में देख रहे हैं, तबीयत खराब होती है, सांस नहीं आ रहा है, लोग जिले में भागते हैं, जिले में वहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, 4-4 घंटे उनके बर्बाद हो रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं है कि कहाँ पहले उन्हें जाना चाहिए, कहाँ बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। तो अगर अभी से हम नहीं ये करेंगे, ये एज्यूम करते हुए कि अगर रैपिडली स्प्रेड करता है रूरल एरियाज में और केसेस बढ़ते हैं, तो अभी हमें इस मैनेजमेंट में सोचना पड़ेगा। तो ये एक ब्लॉक लेवल स्ट्रैटेजी के रूप में अगर हम देखें इसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं या सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, हम सब लोग मिलके, तो एक तो जो PHC CHCs हैं जो सरकार के हैं, सरकारी चल रहे हैं, उनमें क्या वैल्यू एडिशन ला सकते हैं। ये सभी बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों के साथ हमारी बातचीत हुई है पिछले 5-6 दिनों में, अलग अलग कंसल्टेशंस में। ज़्यादातर स्वैच्छिक संगठनों का कहना है कि हमें डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं आना चाहिए। माया जी ने जैसा कहा, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स का सपोर्ट है, या जो हमारी महाराष्ट्र के साथी कह रही थी कि ऑलरेडी वो चलाते हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने लाइवलीहुड में काम किया, वाटर में काम किया, एजुकेशन में काम किया, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में सिर्फ काम किया, वो अगर इसमें आएंगे तो उनके लिए रिस्क भी है, सरकार भी नहीं चाहेगी और सरकार को ब्लेम करना भी आसान होगा। तो एक तो सवाल ये है कि हम इन PHC CHCs में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो दो तरह की आवश्यकताएं हैं, तो इसलिए डोनर से भी जो हमें मदद चाहिए वो क्या मदद चाहिए। इन हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, इनके पास दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीमीटर्स नहीं है, PPE किट्स नहीं है। तो ये जो उनको सहयोग चाहिए वो एक तो मटेरियल सपोर्ट उनको किसी तरह से मिल जाए, क्योंकि उनके अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और बहुत जगहों पर क्योंकि सरकारें, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, संजय जी ने मध्य प्रदेश सरकार का भी जिक्र किया, यूपी सरकार भी कोई उसमें पीछे नहीं है, जिस तरह का सारा कुछ हो रहा है दिखाना भी नहीं चाहते कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है या उनकी पूरी तैयारी नहीं है। तो हमें अगर कहीं से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो। दूसरा क्या है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो पेशेंट केयर में लगा हुआ है, क्या हम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होता है, कुछ वॉलंटियर्स मिल जाएं जो उनका पेपर वर्क करने में मदद करें, जो पेशेंट्स हैं उनको और मदद कर सकें, वहाँ की क्लीनिंगनेस सारी चीज़ों में काम कर सकें। तो वो हमें देखना पड़ेगा। कोविड सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ वॉलंटियर्स को तैयार किया जा सकता है अगर सेंसिटाइज किया जाए। जो लोग अभी कोविड से गुजर चुके हैं, अगर उनको समझाया जाए कि भाई आपके पास एनफ एंटीबॉडीज हैं, यू कैन टेक दैट रिस्क, और हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, कुछ होगा हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हम लोग देंगे आपको। तो वो डोनर्स के साथ जब बात करें तो उस पूरे पैकेज के साथ बात करें, तो वो हमें करना पड़ेगा।
दूसरा इस पे मैं अभी बात करूंगा ग्राम पंचायत क्या कर सकती हैं पॉजिटिव केसेस को देखने के नज़रिए से। और तीसरा अभी आवश्यकता है प्राइवेट प्रोवाइडर्स का या अन्य प्रोफेशनल्स का ऑनलाइन काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन जिसकी बातचीत हुई, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गांव के स्तर पर किसी न किसी तरह से मदद पहुंचे। और चौथा है ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। डिज़ास्टर जब भी आता है तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमें कंट्रोल सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है जो कोऑर्डिनेट कर सकें इंफॉर्मेशन को, जो बता सकें कहाँ पे अवेलेबिलिटी है बेड्स की, कहाँ से क्या जा सकता है, कहाँ पहुँचना चाहिए, एम्बुलेंस कहाँ है, कहाँ से कब पहुँच सकती है। तो डेथ्स को कम कर सकते हैं, क्रिटिकलिटी को कम कर सकते हैं। तो उनको मदद में भी शायद हमारे बहुत सारे साथी जिनका एक्सपीरियंस है डेटा मैनेजमेंट का, इंफॉर्मेशन देने का, फ़ोन लाइंस पे बैठने का, वो सारा मदद हो सकता है। और ग्राम पंचायतों के पास बहुत सारी स्कीम है जो आज के तारीख में बहुत यूज़फुल है। एक परिवार सहायता की स्कीम होती है जिसमें 15 या 20 हज़ार रुपये अगर मुखिया नहीं रहता है तो मिलता है। अटल पेंशन योजना है, किसी परिवार में कुछ लोगों ने 12 रुपये या 15 रुपये जो उस वक्त कटे थे वो बैंकों में कट गए उनके जनधन अकाउंट से, उनको पता भी नहीं है, लेकिन उसने उनको इंश्योर कर दिया कि अगर कोई ऐसी डेथ होती है तो ₹1,00,000 या ₹2,00,000 मिलता है। बहुत लोगों की पीएम इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड बना हुआ है, हेल्थ कार्ड IAY वाला जो बना हुआ है, तो वो देखा जा सकता है। PDS के माध्यम से राशन की सप्लाई उनको की जाए। तो बहुत सारी स्कीम्स का यूटिलाइजेशन भी बढ़ाया जा सकता है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि एक ब्लॉक को यूनिट बना के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अगर इन 4-5 स्ट्रेटजीज के ऊपर साथ में काम करेंगे तो शायद हमारा इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और सिस्टमेटिकली सरकार की मदद भी हम कर पाएंगे इस माध्यम से। ये जो विलेज लेवल पे काम की बात है, जो मैं कह रहा हूँ कि पंचायत इसमें काम करे, और उसमें आवश्यक है कि एक हमें विलेज कोविड सपोर्ट सेंटर की परिकल्पना देखनी पड़ेगी, जहां पर इस सेंटर को पंचायत रन करे। मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पर इस तरह के बेड्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है पंचायतों को, उनको ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए भी कुछ पैसे दे दिए गए हैं, परचेजेस वगैरह नहीं हो रही हैं। तो ये जो हम इसको रिसोर्स सेंटर की तरह से देख रहे हैं, तो एक तो ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे जिनके पास जानकारी है, ट्रेंड है, ज़्यादातर यूथ हैं, वॉलेंटियर्स हैं, चाहे वो जल सहेली के रूप में हो, चाहे वो हमारे देख परख सैनिक की तरह से हो, या अन्य जगहों पर जो सोशल कैपिटल हम लोगों ने गांव में तैयार किया हुआ है नवयुवकों की तरफ से, उनको अगर हम ट्रेन करके वहाँ पर देंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, वहाँ पे उनको ऑक्सीमीटर में चेक हो सकता है, टेम्परेचर लिया जा सकता है। जो लोग होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं वो होम आइसोलेशन में रहें, जो इस सेंटर पे आना चाहते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं वो यहाँ आए, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनका रहने की व्यवस्था करना, कुछ ड्रग्स जो नॉन शेड्यूल्ड एज ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से उनको मुहैया कराई जा सकती हैं। ये बहुत सारे काम इस सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं, और ये जो है वो कम्युनिकेट भी करता रहे ब्लॉक और जिले स्तर पर, जहाँ जहाँ पर सुविधाओं की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ लो फ्लो ऑक्सीजन फैसिलिटी है और कहाँ पर हाई फ्लो ऑक्सीजन फैसिलिटी ICU है। तो जिस तरह के केसेस हैं, कम्युनिकेट करके डॉक्टर्स के साथ उनको उस तरह से डायरेक्ट कर सकें और भेज सकें। तो बेसिकली माइल्ड केसेस के मैनेजमेंट के लिए हैं, जो ऑटोमेटिकली 14-15 दिन में ठीक हो जाएंगे अगर पैरासीटामोल और थोड़ा उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है, फ्लूइड्स लेते रहते हैं, खाना ठीक से चलता है, और आइडेंटिफिकेशन हो जाए उन केसेस का जिन्हें जाने की आवश्यकता है। ये होम केयर में बहुत सारी महिलाएं हैं, केस टू केस बेसिस पे पंचायत उस सेंसिटिविटी के साथ देख सकती है, उन महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था हो, कैसे हो। तो दूसरा है पंचायत का रोल। तो पंचायत को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा कि स्कूल की बिल्डिंग लें, उसमें फैंस लगें, बेड्स हों। हमें पता है कि लास्ट टाइम लोग शाम को घर वापस आ जाते थे, इंसिस्ट किया जाता था तो वहाँ पहुँच जाते थे, और लेकिन शाम को वो घर पहुँच जाते थे क्योंकि फैसिलिटीज इस लायक नहीं थी, महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट्स नहीं थे, सेफ्टी नहीं थी। तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं रुका करते थे। इसलिए जो फील्ड लेवल पे वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता जिनकी ट्रेनिंग हुई है, आरोग्य सेंटर्स भी वो चलाते हैं, उनके पास पैरासीटामोल और इस तरह की कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध होती है देने के लिए, उनको हमें रोप इन करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोप इन करना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारे वाइटामिन और बच्चों को देखने के सहयोग हैं। और ANM अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो थोड़ा समय लगा के ANM की ड्यूटी के साथ बहुत सारा काम किया जा सकता है, क्योंकि वो सारे चार्ट्स बना के रखेंगे, ANM आके देख सकती है और उस आधार पर वो काम कर सकती है।
तो मैंने कहा कि इसमें सबसे क्रिटिकल है कि लोकल यूथ को तैयार करना और उनकी ट्रेनिंग करना, जिससे वो ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को देख सकें, सेचुरेशन देखें, बॉडी टेम्परेचर, बाकी चीज़ों को सुबह शाम भी अगर 2 बार ले लेंगे तो बहुत सारा मैनेजमेंट हो सकता है। होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स को लोगों को बार बार बताएं। कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारे पंचायतों के पास फंड्स हैं और बहुत सारे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट भी देने को तैयार है, लेकिन उनकी कन्वर्जेंस नहीं हो रहे। तो अगर हम लोग मदद करें तो उसी पैसे से इन रिसोर्स सेंटर्स को खड़ा किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का काम पंचायतों को करने की ज़रूरत है कि कैसे ये पूरा MIS जो बन रहा है, जो डेटा है, क्योंकि बहुत सारा अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन का अभाव है कि वास्तव में सिचुएशन क्या है। तो ये मदद करेगी हमें उस एविडेंस जनरेशन के लिए, किस तरह के केसेस हैं, किस तरह के ठीक हो रहे हैं, कौन लोग जा पा रहे हैं, कितना समय लग रहा है। और प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जो किसी ना किसी तरह से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको साथ में लाएं और उनका ओरिएंटेशन करें। पंचायत ये कर सकती है। CSOs का रोल इसी से निकलता है, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। हम क्या डेडिकेटेड टीम ला सकते हैं ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासन को मदद करे, गांव के स्तर पर वॉलंटियर्स को हम खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन का काम, काउंसलिंग का काम करने के लिए हमारी तैयारी हो सकती है। अवेयरनेस मटेरियल हम किस तरह से वहाँ पे पहुँचा सकें। ये जो पंचायतों के आइसोलेशन सेंटर्स हैं, इनके पूरे मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स उनको चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का काम वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं। और लोगों को एलिजिबिलिटी, जिनकी अलग अलग तरह की हेल्थ इंश्योरेंस अदर स्कीम की, उसको फैसिलिटेट करने की, एप्लीकेशन लगवाने का काम इस दौरान कर सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में ये 2 महीने का ही पर्सपेक्टिव है, 3 महीने का ही पर्सपेक्टिव है। आगे हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉलिसी आस्क हैं इसके लिए। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे बात करके समाप्त कर दूंगा कि NGOs का एक्टिव रोल इसमें देखने की आवश्यकता, और कैसे, हाउ कैन वी बिल्ड ब्रिजेस with the department and government. So that's important. Flow of resources from the donors, I think a friend from IDR has already spoken about it. There is a need to do a kind of a matchmaking of what kind of resources are required, because there are a number of donors who are willing, but they should know what exactly it happens in most of the disasters, what people need and what supplies come. There's a mismatch, and therefore a lot of resources are wasted. So there's a need to build that kind of connection. FCRA rules की flexibility की जरूरत है. The restriction that you cannot transfer from one FCRA licensee to another licensee, I think that has to change. Flexible funds should come more to the local governments, and we need to set up district coordination groups and block coordination groups to mitigate this kind of disaster. So I stop here. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you, Yogesh ji, for sharing a model right from the panchayat level to the state level. This Maranita has just told me she needs to leave at 6. So we have 3 speakers: Pratibha, Dr. Sitaraman, Smaranita. So can we just quickly hear from all 3 of you? Just quickly some bullet points and what you all think we need to, how we can move forward based on what we have heard. तो पहले मैं प्रतिभा को बोलूंगी कि जल्दी प्रतिभा आप बताएं कि आगे हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। बस 2 मिनट में प्रतिभा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म हम लोग सोचने के लिए बाद में बैठेंगे ही, पर अभी ये नहीं लग रहा है कि तुरंत ही ये कम होगा। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा जन जागृति की जरूरत है। लोकल भाषाओं में पोस्टर करना, ऑडियो वीडियो करना, ये प्रचार प्रसार का हम लोगों को करना होगा। डॉक्टर और गांव के लोगों के बीच में हम लोग कैसे एक पुल बना सकते हैं, उसके लिए अलग अलग समिति और लोगों को विश्वास देना, ग्राम पंचायत को एक्टिव करते हुए PSC सेंटर को भी बहुत ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है, और उन लोगों को एक साथ जोड़ के आगे काम करने के लिए भी, इसलिए कि अभी हेल्थ सिस्टम गांव की बहुत स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है। और इसी तरह से ये जो अंधविश्वास अभी बहुत लोगों के बीच में फैला हुआ है, इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। और जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें वैक्सीनेशन शहरों में ही ज्यादा जाता है, क्योंकि शहरों की न्यूज बनती है और उस तरह से ये बनता है। तो क्या हम लोग ये गांव तक वैक्सीनेशन कैसे पहुंचे, कम से कम सब सेंटर तक, और वहां पर लोग आए, इसको हम लोगों को प्लान करना चाहिए।
और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ बेड अवेलेबल है, और डॉक्टरों की जिस प्रकार से लूट हो रही है, डॉक्टर जिस प्रकार से लूट कर रहे हैं पेशेंट की, उसके लिए एक प्रकार से क्या कितनी मतलब एक आईसीयू के लिए कितना पेमेंट हो सकता है, क्या होना चाहिए, इस तरह का एक रूल बनाया जाए सरकार ने, तो ये भी कोशिश हम लोग एडवोकेसी के तहत कर सकते हैं। और मनरेगा को जिन गाँव में हम लोगों की जरूरत है, और उस तरह से राशन और मनरेगा को अभी मुफ्त में राशन देने की मांग को आगे बढ़ाए एडवोकेसी के तौर पर, और मनरेगा के तहत खेत और जंगल इन दोनों में कैसे काम को दे सकते हैं, इसको करें। ये काम हम तुरंत 3 महीने के लिए कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम बाद में बैठेंगे ही। इंदिरा मैम, एक छोटी सी मेरा भी सवाल था। प्रतिभा मैम ने पहले बताया कि 6,000 रुपए, 4,000 डीबीटी कैश ट्रांसफर और 2,000 का राशन। तो एक तो मैं ये राशन वाला पूछना चाह रहा था कि मैम पीडीएस के अलावा और आपको क्या क्या लग रहा है कि जरूरत है, क्योंकि हम तो आर्ग्यू कर रहे थे कि थालीनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उसमें और भी प्रोविजन हो, क्योंकि डिसेंट इम्यूनिटी वगैरह के लिए। और दूसरा मैं पूछ रहा था कि मैम जो 4,000 आप जो बता रहे थे डायरेक्ट ट्रांसफर वाला, क्या वो आप इंडिविजुअल बेसिस पे बता रहे थे, मतलब उसका आधार क्या होगा, डायरेक्ट मतलब किसी कार्ड से, और क्या वो इंडिविजुअल था या पर हाउस होल्ड था? वी डिड नॉट गेट टाइम, लेकिन मैं कुछ ये भी पूछना चाह रहा था कि क्या नरेगा से अब सोशल डिस्टेंसिंग इशू है, तो नाउ समर्स गर्मियां आ रही हैं, तो क्या पानी को लेकर भी हम कुछ उसमें भी और सोच सकते हैं क्या, हाउ दैट कैन बी डिजाइन? और एक सवाल और मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारी स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, जो पीएचसी, अब वो तो MIS डेटा वगैरह भी आ रहा, और जन औषधि, उसका क्या स्टेटस है, मैं योगेश सर से ही पूछना चाह रहा था। और सर ने काफी ध्यान भी दिया कि मैन पावर, फिजिकल, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे जाए। तो सर क्या सर का क्या मानना है कि पीएम किसान के जो हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, क्या अब लुकिंग एट द सिचुएशन, क्या वो नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स को भी देने की आवश्यकता है? ये छोटे से कमेंट में पूछना चाह रहा था। अर्जुन, माय रिक्वेस्ट है पहले हम इन दोनों को सुन लें, बिकॉज उनको जाना है, तो फिर उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर योगेश जी और प्रतिभा, आई होप दे विल और डिटेल में, नहीं तो और सेशन कर लेंगे अगली बार। नहीं, प्रतिभा जी प्लीज रुकना, अर्जुन के सवालों का जवाब देना। योगेश जी आप भी। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, बिल्कुल। हाँ, पहले बस हम जस्ट डॉक्टर सीताराम हाँ मैम ने मुझे मैसेज कर दिया, ठीक, ओके। डॉक्टर सीताराम, इज देयर? अनम्यूट, नो, मैम आई विल चेक, वी कैन गो टू। हाँ, सो स्मरणिता, अब आपके सेकंड राउंड। सर इज हियर मैम, यस प्लीज सर। Yeah. Unfortunately, we seem to be running out of time, and there were so many things to share, but I'll try to keep it as crisp and brief as possible. Sorry, if I can just interrupt, I can actually finish. You all should continue. I mean, you all shouldn't stop. No, I need to go because I have a. Yeah. I actually had an appointment at 5:30. I had to go to the hospital. 30 seconds. 30 seconds. Yes, sir, please. No, I didn't get it. I'm saying just within a minute. Or, no, sir, within a minute. So that's it. Doctor, please state your points. Please go ahead. Okay. Okay. Right. So, so I initially mentioned the current situation, the challenges that we are facing. And in a nutshell, I had briefed about the ABCDE approach that we had started off with. When we actually roll out the programs in the right way with well-planned interventions, we can achieve a huge change overnight, and that is what we are seeing. We heard so many challenges from across the places, but then I have also seen that situation is changing rapidly. For instance, the vaccination situation, when we first started off the vaccination in our own hospital, there were hardly any takers. But when we thought out of the box, changed our strategies immediately and went out into the outreach mode,
Now, in the past about 6 weeks or so, we have been able to cover more than 7,000 people with vaccination, both first dose and second dose put together. So I see a lot of revolutionary change that is possible. There were many such success stories in all the A, B, C, D, E's, but I'll just stick to a couple of them. Apart from the vaccination thing, I also mentioned that the other important component will be the care of the disease situation itself, where we have had a multi-tier care program where from home isolation of the asymptomatic to the higher end care with a high end of oxygen requirement. So we have had success programs in all these 3 levels of intervention. And what is really heartening is that our focus on continuing the existing health needs has made a tremendous difference and a tremendous impact on the community. Like we have continued our reproductive child health program. More than 200 pregnant ladies are continuing to get their care. More than 500 to 600 diabetics, hypertensives are continuing to get their care. And we use all modalities, including telemedicine. In fact, recently I even treated a case of fracture. I'm an orthopedic surgeon on tele-linkage, where our medical officers in the hospital were able to reduce a fracture and put a plaster under my guidance from here. So this ABCDE, we've been able to create a great deal of change over the past few months. Now I'll just continue with the next 5 letters, which is our core how to do it part of it, and I'll end with that. We start with the F, and the F for us is the fundamental approach, the fundamental needs, the basic needs, which includes water, sanitation, hygiene needs, nutrition, education, basic education. We reach more than 10,000 children from first standard to 12th grade, and we have continued to impart education in multiple modalities. The socio-economic requirements, livelihood supports. We have a livelihood center where continuous training programs are going on. In fact, we launched a very innovative concept called Sanipreneurship, where this crisis itself was converted into an opportunity. The self-help group women have started stitching and selling masks and other sanitation requirements. We have come up with our own hand sanitizer, which has been tested in the lab and proven to be efficacious. So F, which is focus on fundamental needs, that is a strategy and a policy that we have to advocate for. G is governance, transparency, and accountability. I'm not going to too much into detail there because there are so many layers to it. We just now heard Pratibha mention that doctors are looting the patients. Let me clarify that I am a doctor and I'm not looting any patient. And let me also clarify that most of the doctors stand by it. There is a system which seems to be putting the doctors and the healthcare providers at the receiving end of all the flack, which is very, very unfortunate. So I don't want to get into governance because it's a touchy issue and multiple layers to it. Moving on. The next is the H, where we have a humane, holistic, and contextually relevant approach, where we take and address the socio-emotional needs. Like our tribals need a different approach, our persons with disability need a different approach. So we contextualize the approach and to the particular community, to the particular demands that they are living under, and change the delivery modality so that they get the benefit of it. I is inclusive and equitable approaches. LNOB, leave no one behind, is the slogan that we follow. And we have been able to reach out to thousands of persons with disabilities, sanitation workers, etc., and tribals who are living in difficult conditions. So that is something that we should focus on. And all this is possible with J, joining hands. So we believe in working with the government and with other agencies. And the volunteer system that was mentioned has already been tried out and it has worked very well for us. So we have had more than a dozen youngsters joining us, volunteering in our mobile health units and other home care programs.
where community involvement through self-help groups and other such platforms, other CBOs are also being elicited. So A, B, C, D, E as what to do, and F, G, H, I, J as how to do. So this is in a nutshell what I think I can say we've been trying to do. And through this, we've been reaching out to more, I think close to 500,000 population. And there is definitely a big challenge, but then every challenge is an opportunity for growth, opportunity for innovation and improvement. And we believe that we will definitely emerge victorious. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Doctor, for sharing your the other letters also from F to J. Comprehensive. Yes, ma'am, please. Yeah, so mine, sorry, I'm just going to be very short. So like I said, right, so what we can do is amplify some of the work that you all are doing, because I think there's tremendous value for like the larger, other stakeholders and the larger public to know what is happening on the ground and therefore how it can be addressed. But I think I would also encourage you all to kind of actually speak to your local media, to kind of talk about some of these things, right? Because I mean, just as important as, I learned a lot just listening to all of y'all, and each one of us has learned from each other. And similarly, I think there's value in if you can put out some of this messaging outside, even in your regional media, local media, other people can learn from it, right? So that nobody has to kind of reinvent the wheel. So I would really encourage that you all speak to, not like in institutions or governments and stuff, but also to media to kind of talk about this work. Because I think the narrative has to change from being this whole urban, what is required in like the large metros, to what is required for support in like a smaller, this at our end at IDR, we will continue to, amplify some of the work that we're seeing happen. We will definitely kind of write about all the things that, we learned about today. And yeah, we will, I think, try and be a platform where people can support, whether monetarily or in any other form, organizations that are doing work on the ground. Thank you, Smaranitha. That's a good start for all of us. So I think, Arjun, we can just now. Let me propose a quick vote of thanks. Yes. So I thank all of you for participating in this panel discussion, Rural Realities from Practitioner Experience in Tackling the Second Wave in Indian Villages. I'm sure we all have so much of things to add, but quickly we tried to, with guidance and direction of Indira ma'am, to come forth with a lot of practitioners to also interact and have this conversation together. So I'm very thankful to all of you, especially Indira ma'am, for this event. And on behalf of IMPRI, CDEX, Sadiq Masih, Tarun Bharat Singh, Parmarth, and Counterview, India Water Portal, Delhi Post, many organizations, and all of you have such a wonderful organization also. So Yogesh sir, thank you very much, Sanjay sir, Smaranitha ma'am, Maya ma'am, Dr. M.R. Sitaram sir, and Pratibha ma'am, thank you so much. And we look much forward to learning from you and also contributing to have and also instill positive impact. Have a very nice evening, and thank you so much for your time.